So what is accounts payable? Anyone? Accounts payable मतलब क्या है? क्या अकाउंट्स पेबल मतलब है? जोर से स्पीक लाउडली. This is a short term debt, like account kind of amount we have to like pay from like creditors, Simply we are maintaining a transaction, all the record into the books of account on behalf of vendor, so we need to pay the amount, right? So vendor has a liability in always our books of account, right? So for what situation vendor will come? Vendor means what? Vendor means sundry creditor, right? हम लोग पहले सीखा था ना, sundry creditor, trade payable. Nowadays we call it as a business partner. In corporate companies, it is company, we call it as a business partner. Okay, so let us present first. One present. Let me allow me 2 minutes. I'll download or not. Did I download it? Yes, right. So before going to accounts payable, so we are all are in planning to do in a corporate company, right? MNC company doing accounts payable, right? So accounts payable is a part of P2P, procurement to pay. Procure to pay means we need to purchase a material or else we need to render a service. ओनली दो टाइप में होता है, इधर आपको गुड्स खरीदना है नहीं तो सर्विस लेना पड़े. यही दो केस है, इसी दो केस में अकाउंट्स पेबल आता है, राइट? गुड्स मींस anything like products. Anything. So goods means nothing but a physically you can visible, right? So it will be kept in somewhere. So which company mostly using a goods? If you are working in a TCS, Tata Consultancy Service, then the most 100% support Tata company is a 100% the company total parts. So how many purchase order they will go to the purchase goods related? So it may be 40%, 30%. Because why? The company intention is to service, not for product manufacturing, right? If the manufacturing company, ITCC, FMCG, Hindustan Unilever, these all company have a more they were incurred for the production base. Production base means they will purchase always material. So service based company, most of the companies are doing with the service PO, not for what you call material PO. Okay. So we are all are doing before that purchase account is payable. So main intention is our intention is what? We are working in some software, right? हम लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर में काम करना है, right? So we are all are nowadays it's a familiar software ERP means क्या है? Enterprise Resource Planning. Last class में मैंने पढ़ाया था, पर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है. So ERP मतलब क्या है? Tally also ERP, SAP also ERP, Oracle also ERP. ERP means all module together into one place. All the module to collaborate in a one system. Simply, purchase team also working in the same tool, and finance team also working the same tool, SD team also working the same tool, and HR also working in the same tool. If you're working in Tally is only specific model, only for accounts and inventory. Inventory also I think not fully, 50%. Okay, and payroll also. Oracle only for finance. Then what happen? We have dependency on other tool. हम लोग डिपेंडेंसी होता है और एक टूल पे, तो और एक टूल पे डिपेंड होने से क्या होता है? तो वी विल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए स्पेशल पीपल चाहिए, राइट? सो डेटा आल्सो प्री फ्लो नहीं होता है. प्री फ्लो मींस परचेस टीम हैव डन द ट्रांजैक्शन, द फाइनेंस टीम कैन नॉट विजिबल, कैन नॉट व्यू द ट्रांजैक्शन, व्यू द रिपोर्ट. अभी कोई आप फाइनेंस टीम में है, कोई पूछेगा आपको कितना इनवॉइस अभी तक पेंडिंग है, हाउ मेनी पीओस यू आर नॉट वेट बीन कन्वर्टेड एज इनवॉइसेस. सो हाउ डू यू नो दैट? यू अगेन डिपेंडेंसी ऑन other team members, procurement team. You ask them, call them. So how many POs as of now pending? So then okay, I will check and let you know. Maybe the time consume it will take more time and as well as accuracy also missing. और अगर वो 20 PO है, वो बोल देंगे कि ना मैं 18 PO बाकी है पेंडिंग, तो मे बी 2 PO एक्यूरेसी मिस हो गया, टाइम भी लेट हुआ, वो पर्सन वहां पे नहीं है, सिस्टम में नहीं है, देन अगेन टेक टाइम, वो लीव में है, अगेन टेक टाइम. दीज ऑल थिंग्स. ERP जो है every module together into one place, that is called ERP. ERP is not a software. Okay, ERP is not software. ERP means ERP is a tool where you can integrate it with all the function into one place, that is called ERP. सब लोग ये किस पे काम करते बोलते ERP बोलते,
That is not correct. ERP is a tool only. We need to work ERP to all the function into one place. In the out, ERP is a part. SAP is a ERP. Tally is a ERP. Oracle is a ERP. Like JD Edward is a ERP, and Kickbook is a ERP. Like that, there is many software is ERP. Okay. So integrated all in one system to facilitate pre-flow of data among the function of organization. Pre-flow means procurement team has created the purchase order. So finance team can easily view the reports, view the PO. What PO, which vendor, what material we need to receive, why either PO is done, either approval is not happened or not. Approval is how many approval? It's a one approval, two approval. Which approval is pending? So okay, approval is pending. That's the reason I couldn't book the invoices. Right? These are all things you can easily see without dependence on any person, any department. Okay. So that is ERP. So like procurement, store, sales, right? Finance, production and costing. So you know the right procurement means what will happen here in department. Huh? Procurement का क्या होता है? क्या काम होता है? Only purchase. और क्या होता है procurement में? Only purchase होता है. ठीक है. हाँ? सर्विस और क्या होता है? बस दो ही है. Procurement यही काम करता है. Think. Verification may quality also not. They need to choose the vendor, right? Who will contact? They will contact a vendor. So they will maintaining a vendor. Yes, this vendor is supplying correctly or not. This vendor material is quality of good or not. This vendor how much demand in the market. Everything they will view. Okay, vendor management, and even though as well as quality also they will check. The quality, best quality they are providing order in the right time, they are delivering a goods or not. अब आपका प्रोडक्शन है, आप एक सेल्स ऑर्डर ले लिया, आपने एक ऑर्डर उठा लिया, ठीक है. सो आपने ऑर्डर उठाया 30 लैपटॉप आपको बनाना है, ठीक है. यू हैव एक ऑर्डर उठा लिया, 30 ऑर्डर सेल्स लैपटॉप बनाना है. तो 30 लैपटॉप बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए. तो यू नीड टू, ऑर्डर में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है. बेस्ड ऑन द सेल्स ऑर्डर यू हैव एग्रीमेंट. सो मेरे को इतना दिन में चाहिए, 30 डेज में लैपटॉप बना के देना है. एग्रीमेंट. बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट आप स्टार्ट करेंगे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करना, राइट. सो बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चूज द वेंडर. कहां से कौन सा मटेरियल लेना है. तो मटेरियल यू कैन चूज व्हेन मटेरियल जब लेना है, कस्टमर आपसे पैसा नहीं दिया. एग्जांपल, कस्टमर ने क्या किया, आपने कस्टमर से एडवांस नहीं लिया, तो आपका पास अमाउंट बहुत कम है, लिक्विडिटी बहुत कम है, कैपिटल बहुत कम है. तो व्हाट यू नीड टू आस्क टू वेंडर टू बोरोइंग ए क्रेडिट ऑन क्रेडिट बेसिस. कौन सा वेंडर क्रेडिट देंगे, कौन सा वेंडर क्रेडिट नहीं देंगे. जो वेंडर क्रेडिट देंगे आप उसी के पास जाएंगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल उतना नहीं है कि लैपटॉप खरीदने के लिए. देन यू नीड टू चूज द वेंडर चूज करना. और वेंडर चूज करके वेंडर आल्सो चूज एज नॉट कैश बेस एंड क्रेडिट बेस. 30 डेज 40 डेज आप क्रेडिट लेंगे. तो उससे फायदा क्या है, आप लायबिलिटीज में खरीदेंगे, कस्टमर को मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेगा, आपको अमाउंट आएगा वहां से, उसके बाद इनको देंगे, राइट. अगर आप पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका पास और भी कुछ एक्सपेंडिचर नहीं होगा. इसमें दीज ऑल थिंग्स परचेज टीम डील करता है, एवरीथिंग, राइट. पेमेंट टर्म्स, आपको अगर मैं परचेज ऑर्डर किया है तो आपको इतना दिन में पैसा देंगे, ठीक है. How many days? After maybe 30 days, 60 days or 90 days. We call it as a payment term. पेमेंट टर्म. इन द पेमेंट टर्म में क्या होता है, कंडीशन होता है कि आप एक बार मेरे इनवॉइस भेजने के बाद 30 डेज में आपको पेमेंट करेंगे, 60 डेज में पेमेंट करेंगे, 90 डेज में पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, everything. Even though there is a one more called cash discount also. So if vendor is saying that, so if you pay me within 20 days, I will provide you 2% discount. If you pay me within 10 days, I will give you 3% discount. If you pay me 30 days, no discount. Everything should be there in the payment term. There are lots of payment term. When payment term will come into the subject, I will tell you, right, what is the payment term, how to define payment term and everything. So right, so procurement team, you know, understand, right? What is the stores? Store means warehouse. Warehouse people, what they are doing? General function. Whatever the purchase, we book the purchase order. The material come into our gate, our factory. So these materials they will receive and they will check either the physical damage or not. Physically everything is good. They will keep in somewhere location, right? Even though whenever they require for material for what production purpose or receive a material, everything the warehouse people can do that, right? So even though वहाँ पे material आ गया, material नहीं बोलो कि material आके वहाँ पे रहेगा, no, it will go to somewhere where production में जाएंगे, manufacturing होगा, right? Production में जाकर क्या होगा, अगर 100 quantity आपको material वहाँ पे है, तो आप manufacturing के लिए 20 quantity use किया, तो वहाँ पे 80 quantity रहना चाहिए, right? So 80 quantity रहेंगे, तो everything they will do, who will do? Store people. Store people is nothing but a warehouse team. Okay. After warehouse, sales.
सेल्स मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर जो ऑर्डर उठाता है जनरली। ऑर्डर मतलब क्या है कि आपका जो भी लैपटॉप का ऑर्डर है, जो भी है, बहुत लोग होता है ना मार्केटिंग में जो सेल्स करके कस्टमर को अट्रैक्ट करके करता है, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर नंबर ऑफ हॉस्पिटल में जाता है कि उनका प्रोडक्ट दिखाता है कि प्रोडक्ट क्या है, एक दो सैंपल देता है, सैंपल अगर अच्छा है तो डॉक्टर को देके इसके बाद क्या करते हैं, they will negotiate whatever the price and all these things they will sold out to hospitals or they will sold out to medicals or whatever in the base of credit or something like same like this salesperson will do. Salesperson choose the customer and credit limit and everything. Okay, मिनिमाइज कर देता है इसका, और कुछ है इसमें 1 minute हाँ okay. Stores, sales, finance. What finance team what will do? Finance team is the functional for integrated by all the model. Without the finance team, so nothing will get. That is why SAP also, who is working in a FICO, the person is more demanding other than all the model, because demand is FI is a integrated with all the model. आप परचेस से मटेरियल खरीद रहे हैं, जीआरएन खरीद रहे हैं, जीआरएन के बाद इनवॉइस होना है तो फाइनेंस टीम इन्वॉल्व, पेमेंट करना है फाइनेंस टीम हो रहा है, सेल्स हो रहा है, सेल्स से कलेक्शन हो रहा है, हाँ, और एडवांस देना है, पेरोल से पेमेंट देना है, एम्प्लॉय को पेमेंट देना है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द फाइनेंस. फाइनेंस में बजट भी होता है, बजट ऑल्सो, दैट्स कॉल्ड कॉस्टिंग. फाइनेंस वाले में दो टाइप, कुछ कुछ कंपनी में डिवाइड कर देता है. फाइनेंस इज कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस इज डिफरेंट. कुछ कंपनी क्या करते हैं, कंसोलिडेट कर देता है. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैक्सिमम पीपल वर्किंग इन फाइनेंस साइड, कॉस्ट पीपल आर ICW पीपल आर वर्किंग फॉर कॉस्ट साइड. कॉस्ट साइड मीन कॉस्टिंग शीट बनाता है कि मेरे को एक मैन्युफैक्चर एक लैपटॉप बनाना है तो कितना एग्जैक्टली कॉस्ट होगा, कितना कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी यूज करना है. अगर 2 क्वांटिटी 200 रुपीज है तो मैन कितना हो रहा है, मशीनरी कितना हो रहा है, ओवरहेड कितना, एवरीथिंग जो शीट कॉस्टिंग शीट कैलकुलेट करता है. तो ओवरहेड सब कुछ करके उसमें क्या एग्जैक्टली पता चल जाएगा, हो मेरा इस लैपटॉप बनाने में 40 की 30,000 जो भी होगा इतना, इससे जब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मटेरियल बीच बीच में बढ़ देता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस. वो एवरीथिंग वो चेक करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस. प्रोडक्शन मीन्स, प्रोडक्शन टीम मीन्स मैन्युफैक्चरिंग राइट, द पीपल what they do in production department. वो तो ठीक है, प्रोडक्शन का टीम का फंक्शन क्या है. इफ यू आर इन प्रोडक्शन टीम, व्हाट आर द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी. टाइमलाइन जो होता है, टाइमलाइन में आपको प्रोडक्ट बनाना है, फर्स्ट टारगेट है. अगर प्रोडक्ट लेट हुआ तो क्या होगा, सेल्स ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कस्टमर दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा क्योंकि राइट टाइम में डिलीवरी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज हो सकता है. तो प्रोडक्शन का टीम प्लान होता है, प्रोडक्शन प्लान. प्रोडक्शन प्लान मतलब इस महीना में इतना इतना घंटा में इतना आवर्स में मशीनरी इतना आवर चला के इतना मेरा आउटपुट आना चाहिए. एवरीथिंग वो लोग एक प्रोडक्शन प्लान करता है, राइट. तो मेरे को इस मटेरियल है, इतना मटेरियल मेरा ऑलवेज सेफ स्टोर में रहना चाहिए क्योंकि मेरे को सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है. इतना मटेरियल मेरा डिलीवरी में जाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग में जाना चाहिए, इस कस्टमर को जाना चाहिए, इस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल खरीदे, क्या कैसे मैन्युफैक्चरिंग करूँ, एवरीथिंग देयर प्रोडक्ट प्लान करते हैं. सो प्रोडक्शन टर्म प्लान. स्क्रैप कितना होना चाहिए परसेंटेज, कोई भी मटेरियल बनाता तो स्क्रैप होता है कि नहीं, तो स्क्रैप ऑल्सो दे विल कंसिडर इन द कॉस्ट. सो द प्रोडक्शन प्लान. कॉस्टिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉस्टिंग मींस कॉस्टिंग शीट बनाता है कि कौन सा मेरे कितना कितना लेबर लगेगा, कितना मशीनरी लगेगा. ठीक है, कॉस्टिंग बजट क्या है, एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में समझो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को 5 पीपल को इन्वॉल्वमेंट किया तो 5 पीपल को सैलरी कितना है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 5 पीपल का इतना एक्सपेंडिचर है, ये लोगों को रिजल्ट क्या आ रहा है. तो एवरीथिंग दे विल कंपेयर. बजट है, इस लास्ट ईयर से बजट, इस बजट ईयर बजट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो बजट ज्यादा है कम है कंपैरिजन करेगा. ज्यादा है, कभी कभी होता है पता है कि एम्प्लॉय ज्यादा हो गया तो कंपनी इसको रिमूव कर देता है, लाइक रोल आउट कर देता है, प्रोजेक्ट रोल आउट हो जाता है, लॉस हो जाता है बोल के. ये एवरीथिंग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम है. जनरली कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो करता है. जनरली बजट होता है कि एक प्रोजेक्ट है, मेरा एक प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट को एक ऑर्डर है, एवरी एक्सपेंडिचर एवरी इनकम एवरी रेवेन्यू पोस्टिंग इनटू दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर में पोस्ट होता है. पोस्ट होने के बाद मंथ एंड में एक बार रिव्यू होता है, ओके इस प्रोजेक्ट में मेरा इतना रेवेन्यू आया, इतना एक्सपेंडिचर आया, गेन आया कि लॉस आया. एवरी ईयर कंपेयर करते हैं, एवरी मंथ कंपेरिजन करेंगे, फाइनली चेक करेंगे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो लॉस चल रहा है तो प्रोजेक्ट रोल आउट हो जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को डिमांड करता है कि नहीं हम लोग लॉस में जा रहा है कि बढ़ाना चाहिए. दैट पीपल विल डू द कॉस्टिंग.
ओके, सो इन ईआरपी में क्या होता है, ईआरपी में एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, वराकिल भी एक सॉफ्टवेयर है, बैन एक सॉफ्टवेयर है, पीपलसॉफ्ट है, जेडी एडवर्टाइज, टैली। मैं लास्ट क्लास में सबका बारे में बताया। तो एसएपी क्या है, इंटीग्रेटेड टू ऑल द फंक्शन। एसएपी में आज का डेट में 74 मॉड्यूल्स है, एफआई, सीओ, एमएम, एचआर, क्यूएम, वेयर हाउस, बी, नंबर ऑफ एचआरएम, ठीक है, और एचडी, प्रोडक्शन प्लान, प्लांट एंड मेंटेनेंस, ठीक है, कोपा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ मॉड्यूल है, ठीक है, टू 74 मॉड्यूल्स ऐसे। ओके, बाकी वराकिल ओनली यूज फॉर फाइनेंस, फाइनेंस छोड़ के और कुछ नहीं काम होता है, ठीक है। बैन, बैन ओनली फॉर प्रोडक्शन, पीपलसॉफ्ट ओनली फॉर एचआर, एचआर के लिए होता है। हाँ, जेडी एडवर्ड इट इज अ प्रोडक्शन, टैली 2-3 होता है जो मैंने बताया, ठीक है। इट मीनिंग ऑफ दैट व्हाट, इफ यू कंपनी, आपका कंपनी वराकिल यूज किया, बैन यूज किया, मतलब 3 फंक्शन में 3 सॉफ्टवेयर यूज किया, तो रिपोर्ट डाटा फ्लो फ्रीली नहीं होता है, क्योंकि टूल अलग अलग है ना, वराकिल अलग है, बैन अलग है, पीपलसॉफ्ट अलग है। तो ये क्या हो रहा है, टाइम टेकिंग हो सकते हैं, एक्यूरेटी मिस हो सकते हैं, आप जितना टाइम में चाहिए उतना, रिपोर्ट भी लेट होता है प्रिपेयर करने में, राइट। तो मोर मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग अलग है, उसके लिए ईएमआई देना पड़ेगा, एनुअल मेंटेनेंस, राइट, तो कॉस्ट होता है उसके लिए। तो एसएपी क्या है, एसएपी क्यों इतना डिमांड है मार्केट में, कारण है कि एसएपी इज इंटीग्रेटेड फॉर ऑल द मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल फंक्शन मिला के एक एसएपी में, इसीलिए आज का डेट में एसएपी से इतना डिमांड कहीं पे भी नहीं है। तो बड़ा बड़ा बिग कंपनीज लाइक इन इंडिया में आप देखो, कोको कोला जो कंपनी है उसमें 5000 पूरा कंसल्टेंट काम करता, 5000 एम्प्लॉइज। कोल इंडिया 3000 एम्प्लॉय काम करते हैं, ओनली सॉफ्टवेयर, मतलब एसएपी का सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग फ्रॉम आईटी टीम, आईबीएम हो सकते हैं, इन्फोसिस हो सकते हैं, नहीं तो विप्रो हो सकते हैं, कैपजेमिनी हो सकते हैं, कॉग्निजेंट हो सकते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूसी हो सकते हैं, देयर लॉट्स ऑफ कंपनी। सो ये कंपनी यूज करता है, दिस ऑल आर एसएपी पार्टनर कंपनी। एसएपी भी सपोर्ट करता है, बट एसएपी सपोर्ट नो वन इज बेयर इट, बिकॉज द कॉस्ट इज वेरी हाई एक्सपेंडिचर। एसएपी ओनली टू, एसएपी इंडिया में एक ही प्लेस में है, वो है बेंगलुरु में, नोवेयर एल्स, ओनली बेंगलुरु में। अगर आपको कोई एसएपी सर्टिफिकेशन करना है, एसएपी का लाइसेंस लेना है, जो भी लेना, बेंगलुरु ओनली द कंपनी, बेंगलुरु से। तो ये कंपनी जो पेरेंट कंपनी है, हेड जो है वो जर्मनी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये एसएपी जो कंपनी है ओनली, मतलब सर्टिफिकेशन कराना है, आपको कोई एग्जाम लिखना है, कुछ भी करना है, थ्रू एसएपी, नो कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट एसएपी। ओके, सो नाउ कमिंग टू सेकंड स्लाइड अबाउट एसएपी। एसएपी मतलब, एसएपी क्या है, एसएपी बोल रहा है तो एसएपी, डोंट कॉल सैप, ओके, सैप कभी बोलना, सैप इज जर्मनी लैंग्वेज इज पिग, okay, that's why don't call SAP, SAP, we called as a SAP, okay। About SAP मतलब क्या है, SAP is a Germany multinational software company है, known as making enterprise software and manage a business operation, है ना, पहले जो पढ़े थे, every function to be into one place, ठीक है, और बिजनेस मैनेज करेंगे। बिजनेस मैनेज मतलब कि परचेज कैसे करना है, जीआरएन कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे करना, और क्वालिटी कैसे चेक करना, इनवॉइस कैसे बुक करना है, पेमेंट कैसे चेक करना, रिकॉन्सिलेशन करना, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, ऑपरेशन, ठीक है। लाइक दिस सॉफ्टवेयर में काम है। एसएपी पूरा मीनिंग देखो, सिस्टम मतलब नंबर ऑफ सिस्टम, मतलब समझो, एक जीएसटी एक सिस्टम है, बैंकिंग का टूल एक सिस्टम है, आपका एसएपी एक सिस्टम है। एसएपी कैन सपोर्ट ऑल दिस सिस्टम, इट मीनिंग ऑफ दैट, आप एसएपी में पेमेंट एंट्री मारा है तो ऑटोमेटिकली ये पेमेंट का जो एंट्री है सीधा जाके बैंक में होता है, इंटरफेस होता है बैंक गवर्नमेंट, जैसे स्टेट बैंक मेरा पोर्टल है, तो मैंने एसएपी में एंट्री मारेंगे, दैट एंट्री विल ट्रिगर इनटू एसएपी में, एक बार डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा, वो फाइल ऑटोमेटिक लिंक होगा कहाँ, बैंक पोर्टल में डायरेक्ट चला जाएगा, वो फाइल बैंक में जाके somebody is authorized person, बैंक मेरा आईडी है तो मैं लॉगिन करके फाइल इसका ओके अप्रूव, तो पेमेंट हो जाएगा। वंस दैट पेमेंट इज डन, बैंक फिर कंफर्म करेगा फाइल पे, मतलब मैंने 100 इनवॉइस भेजा, 100 वेंडर को पेमेंट किया एसएपी में, तो मेरा 100 गया कि नहीं गया, हाउ डू आई नो दैट, मे बी वो 1-2 फेल भी हो सकते हैं, अकाउंटिंग नंबर मिस हो गया मेरे एसएपी में, नहीं तो मैंने नेम गलत डाला, आईएफएससी कोड गलत डाल दिया मेरा सिस्टम में, हो सकते हैं ना। सो दिस ऑल द रीजन, वो फाइल गया बैंक पोर्टल में, बैंक पोर्टल में जाने के बाद बैंक में अप्रूव हो गया ऑटोमेटिक, कोई कंपनी का जो सीएफओ होता, सीएमडी होता, जो भी होता, उनका पास अप्रूव होता, जीएम फाइनेंस होता, वो अप्रूव कर देगा फाइल को। Once the file is approved, next day morning again one more file coming into SAP, ऑटोमेटिक फाइल आ जाएगा आपको। तो ये क्या है, सिस्टम्स। अब जीएसटी है, जीएसटी क्या होता है, एक आईआरपी पोर्टल है, मतलब आप इंडिया क्या बोल रहे हैं, इंडिया में बोले कोई भी कंपनी 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर करेगा तो एवरी कंपनी हैज टू राइज ए सेल बिल्डिंग इनटू आईआरपी पोर्टल, इनवॉइस रिसिप्ट पोर्टल, एक पोर्टल होता है आईआरपी पोर्टल। तो आपका कंपनी ने अगर 50 लाख से ज्यादा अमाउंट टर्नओवर कर रहा है साल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
IRP पोर्टल में एवरी इनवॉइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब पहले पहले क्या होते थे, ये सब नहीं था। पहले क्या होते थे कि आप एक 001 इनवॉइस टुडे डेट दे दिया इसको, 002 इनको दे दिया, 003 दे दिया, फिर 001 इनको दे दिया, फिर 002 इनको दे दिया। नंबर ऑफ रिपेयर, क्यों? टर्नओवर आपने ज्यादा दिखा रहा है। टर्नओवर ज्यादा दिखाने से क्या होगा? बैंक से लोन ले सकते हैं, कस्टमर बैलेंस शीट एक्स्ट्रा कर रहा है, बैलेंस शीट एक्स्ट्रा करने में क्या होगा? आपका शेयर बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ रीजन, राइट? सो नाउ दीज ऑल थिंग्स आर गवर्नमेंट कंट्रोल करने क्या किया, IRP पोर्टल बोल के एक पोर्टल बनाया। उस IRP पोर्टल मतलब क्या है? इनवॉइस रिसिप्ट पोर्टल, वेयर आपको एवरी इनवॉइस का रिकॉर्ड वहां पे डालना पड़ेगा। एक बार डाल दिया, नेक्स्ट टाइम वो डालने जाएंगे तो सिस्टम आपको एरर थ्रो करेगा, IRP पोर्टल बोलेंगे कि डुप्लीकेट इनवॉइस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर एक बार 001 इस कस्ट ये इनवॉइस 01 का साथ अगर विनीत को मैंने जनरेट कर दिया, फिर 01 नंबर इस साल में आप कर नहीं पाएगा कोई कस्टमर, क्योंकि डुप्लीकेट है IRP पोर्टल में, टर्नओवर कंट्रोल करेगा। तो इस सब के लिए क्या है, तो आपको वो अलग टूल है, IRP टूल है या फिर SAP टूल है। आप SAP में बिल्डिंग डॉक्यूमेंट एंट्री मारेगा, पोस्ट करेगा, थ्रू IRP पोर्टल में वो चला जाएगा डायरेक्ट, जाके वहां पे 64 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर एक तो जनरेट करके वो नंबर फिर उठा के आप SAP में गिरा देंगे। दैट इज टू इंटरफेस। इस सिस्टम अलग है, गवर्नमेंट पोर्टल IRP पोर्टल है, ये SAP सिस्टम है। आप काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे बिल्डिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, ये ऑटोमेटिक बैकएंड में जाके सीधा IRP पोर्टल में जनरेट हो जाएगा, पूरा डिटेल कैप्चर करके यहाँ पे 64 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर एक तो जनरेट करेगा, विद बार कोड एक तो जनरेट करेगा, वो सीधा आके फिर आपको SAP में पैच हो जाएगा। पैच होने से क्या है कि SAP में इसका दोनों इंटीग्रेशन हो, मतलब ये सेंड भी हो गया फिर रिसीव भी हो गया। सो सेम लाइक बैंक में भी होता है, ठीक है? दैट इज SAP एडवांटेज, ठीक है? अभी GST पोर्टल में भी होता है, कितना GST हो रहा है, कितना इनपुट हो रहा है, कितना एवरीथिंग, नंबर ऑफ टूल्स होता है, ठीक है? तो ये SAP का एडवांटेज है। सिस्टम्स मतलब नंबर ऑफ सिस्टम को कंट्रोल करेगा। एप्लीकेशन में नंबर ऑफ फंक्शन, एप्लीकेशन मतलब क्या है? FI, फाइनेंस, MM, अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग डिपार्टमेंट है। प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करेगा, IT कंपनी को करेगा, FMCG को करेगा, रियल एस्टेट को करेगा, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा मतलब उसका जो इनपुट जो है, इनपुट आप एंट्री मारता है, डाटा प्रोसेसिंग यहाँ से आउटपुट जनरेट करता है। वेंडर के इनवॉइस मारा, एंट्री पोस्ट हो गया, दैट इज प्रोसेसिंग, राइट? वंस यू पोस्टेड व्हाट विल हैपन, दैट विल इनटू वेंडर बैलेंस में हो जाएगा। तो वेंडर बैलेंस में जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो आपको आउटपुट आएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड ए डाटा प्रोसेसिंग। क्लियर? The main advantage of using SAP ERP system is SAP very highly integrated. मैंने बोला highly integrated, एक सिस्टम से एक सिस्टम highly integrated है। There is no way system in the world as of now, the people saying that, experts saying that, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है SAP जैसे, उतना फ्लेक्सिबिलिटी है, उतना ही है। SAP इसलिए क्या एडवांटेज है, कंपनी खुद का डेवलपमेंट कर सकते। अगर कंपनी SAP ने कंपनी को सोल्यूशन दिया, टैली आप लोग कितना आदमी को टैली पता है, आई डोंट नो, द पीपल मेनी पीपल आर नॉट। टैली में आप कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाएगा, टैली में जो है वही कर पाए। यू कैन नॉट मॉडिफाई एनीथिंग, आप स्क्रीन को चेंज नहीं पाएगा, फील्ड को चेंज नहीं पाएगा, राइट? वेंडर को सेलेक्ट करेगा, वेंडर छोड़ के और अंडर नहीं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग में आप रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे टैली में, आई थिंक सो, ठीक है? जब मेरे को भी पता है, टैली बहुत साल आगे किया हुआ है, तो टैली वी नेवर डू एनी मॉडिफिकेशन, हम लोग मॉडिफाई कर नहीं पाएंगे, राइट? बट SAP हुए है, कंपनी का जैसे रिक्वायरमेंट चाहिए ऐसे वो मॉडिफाई कर सकते हैं, प्योरली दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज मतलब कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वही करेगा। एक SAP ने एक सॉल्यूशन दिया है कि आपने सेल्स करेगा, सेल्स ऑर्डर के बाद बिलिंग होगा, उसके बाद आउटबाउंड डिलीवरी होगा, तो 3 बता दिया, SAP बता दिया। बट क्लाइंट ने बोला नहीं, वी आर नॉट एक्सपर्ट दिस प्रोसीजर, वी हैव अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, प्लीज डेवलप दिस स्पेसिफिकेशन। तो वो लोग क्या करेगा, पहले सेल्स ऑर्डर होगा, उसका सेल्स ऑर्डर पर मेरा गेट से एंट्री पास होगा, तो एक तो लॉरी का नंबर है, सब नया स्क्रीन होगा, उसमें लॉरी नंबर रहेगा, ड्राइवर नंबर रहेगा, जो भी रहेगा वो आउटपुट चला। उसके बाद एक चलान जनरेट होना चाहिए, वो चलान में सिग्नेचर होगा, वो फिर डाउनलोड होगा, फिर अपलोड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाना चाहिए। स्पेशल रिक्वायरमेंट जो रहेगा उसका अकॉर्डिंगली हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो द डेवलपर डेवलप कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट क्या है, गारंटी कंसिस्टेंसी, मतलब गारंटी कंसिस्टेंसी डाटा गारंटी है, मतलब इनकंसिस्टेंसी डाटा नहीं है, कंसिस्टेंसी डाटा रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम ऑल द कंपनी इटसेल्फ। मतलब आपका टैली में यूज कर रहा है, कोई एक्सेल फाइल यूज कर रहा है, एक्सेल फाइल में क्या होगा, एक्सेल फाइल आपने सेव कर लिया, आपका सिस्टम खराब हो गया तो आपको एक्सेल क्या होगा, खत्म। अगर मेल में रखा, कहीं पे रखा तो ठीक है, नहीं तो गया। तो ये जो डाटा कंसिस्टेंसी इसमें क्यों रहेगा, गारंटी क्या है, ये SAP क्लाउड बेस्ड है, SAP GSP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। कोई भी डेटा एंट्री पोस्ट करेगा, इट विल गो टू द सर्वर इन क्लाउड बेस्ड, सो व्हेनेवर वेयरएवर रिक्वायर्ड वी कैन रिट्रीव द डाटा।
ओके ना. सो इट इज द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज में. आज का डेट में जर्मनी में जो है ना, वो सबसे स्टॉक एक्सचेंज जर्मनी स्टॉक में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है एसएपी का. इंडस्ट्री लाइक कौन सा इंडस्ट्री यूज करता है? वैक्सवैगन, सिमंस, ऐसे कंपनीज आप सुना होगा. सिमंस फर्स्ट इंडिया में सिमंस ने एटोस ने खरीद लिया इसको. पहले अभी भी है लेकिन एटोस ने 50% इसको सॉफ्टवेयर ले लिया. सॉफ्टवेयर अभी ये नहीं करते, एटोस यूज करता है. इट इज अ फर्स्ट एसएपी पार्टनर कंपनी इंडिया में. जब इंडिया में फर्स्ट एसएपी आया तो सिमंस कंपनी ने ले गया. बाद में अभी एटोस हो गया, एटोस पार्टनरशिप है. ठीक है. अभी एसएपी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में एक ही है, वो है एटोस है. उसका कॉस्ट है 100 आवर्स क्लास है 3,45,000 की 3,50,000 फीस है, ट्रेनिंग फीस एसएपी का ओनली एफआई मॉड्यूल. दैट इज ऑल्सो नॉट विच ओनली रिकॉर्डिंग सेशन जैसे रहेगा वो सुनते जाएगा. ओनली 3 अटेम्प्ट से पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो फेल, और कभी नहीं लिख पाएंगे. 3 अटेम्प्ट लिखा है, उसमें फेल हो गया तो आप खत्म, आप भूल जाना एसएपी को. अभी एस4 का एग्जाम का कॉस्ट है 25,000 1 अटेम्प्ट. एक बार फेल हो तो गया 25, फिर एक बार 25 करो. चलो, ये सब एसएपी क्यों पढ़ा रहा मैं? एसएपी सब्जेक्ट नहीं है, क्यों पढ़ रहा? क्योंकि हमने एवरीथिंग वर्किंग इनटू एसएपी. कल कोई हम लोग रेज्यूम बनाएंगे, हम लोग जो अकाउंट्स पेबल पढ़ाएंगे, आई विल वर्क ऑन बेस्ड ऑन द एसएपी टूल. एसएपी टूल में ही पोस्ट करेंगे, एसएपी टूल में ही रिकॉर्ड करेंगे सब एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई मैं एसएपी के बारे में समझा रहा हूं. डायरेक्ट एंट्री करने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, राइट? दैट्स व्हाई. सो एसएपी इंट्रोडक्शन पहले चले गए. एसएपी 1972 में स्टार्ट हुआ. 5 एम्प्लॉई है जो आईबीएम में था, वो लोग पहले ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया, तो आईबीएम मैनेजमेंट के पास लेके गया, तो आईबीएम मैनेजमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड दैट प्रोजेक्ट because they understand that no, it will be a failure project. Sometime failure also may be success, right? So that should be reason they all 5 employees, they fully confident their software, their enterprise software. They have resigned the IBM, they came back to own, they established the company SAP AG company. तो आज का डेट में SAP AG कंपनी यहाँ पे है. यहाँ पे IBM कंपनी ने रिजेक्ट किया है, उसी प्रोजेक्ट में आज के IBM खुद सपोर्ट कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर. ठीक है. तो क्यों इतना फेमस हुआ है? कारण क्या है? क्योंकि इतना इंटरफेस कोई सिस्टम में नहीं है. इवन तो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर जो आता है एसएपी लाइक दैट. सब क्या होता है कि पेज व्हाट्सएप, फेसबुक जब डाउन होने लगे थे, व्हाट्सएप बहुत में था, तो फेसबुक वाला क्या किया? व्हाट्सएप को ले लिया. देन फेसबुक और व्हाट्सएप इक्वल है. अगर फेसबुक व्हाट्सएप को नहीं खरीदता था, मे बी व्हाट्सएप फीस आगे बढ़ जाता, फेसबुक का नाम रचना. जैसे ऑर्किड आप लोग सुना है कि नहीं पता नहीं. ऑर्किड एक था गूगल में, उनका वो बहुत पॉपुलर था फेसबुक से आगे, राइट? तो क्या हुआ? तो चला गया फेसबुक आने के बाद ऑर्किड कहाँ की पता नहीं आज का डेट में. तो यही है सिचुएशन. कभी कभी छोटा कंपनी जब साइन होता है तो बिग कंपनी हैज आयरिंग दैट कंपनी, देन मार्केट में कॉम्पिटिटर बंद हो जाते, राइट? तो इसका मतलब लॉन्च इन एसएपी कंपनी एसएपी जीएमबीएच में इन इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड, राइट? सो वी कॉल्ड एज क्या बोलते हैं वहां पे जर्मनी में? जीएमबीएच बोलते हैं कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं ना हम लोग. सेम लाइक जर्मनी में जीएमबीएच बोलते हैं. जगह यहाँ पे आप जाएंगे तो क्या बोलता है इसको? यूएस में का आईएनसी होता है, आईएनसी बोल के लिखता है, राइट? सो जर्मनी डेवलप स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रियल टाइम बिजनेस प्रोसेसिंग 1970 स्मॉल सॉफ्टवेयर था विथ ओनली 1 कस्टमर स्टार्ट किया. आज का डेट में 4,75,000 से ज्यादा कस्टमर है और 190 कंट्रीज में है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. वाई एसएपी के बारे में इतना क्यों बोल रहा है? 1 मिनट. अरे बड़ा होना चाहिए, छोटा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है. वाई एसएपी क्यों है? फर्स्ट वन इंटीग्रेशन है, राइट? इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि एफआई से एमएम है, एमएम से एसडी है, एसडी से एचआर है, एचआर से पीपी है, पीपी से मतलब परचेज ऑर्डर ने परचेज ऑर्डर किया. परचेज ऑर्डर के बाद क्या होना चाहिए? जीआरएन होना चाहिए, गुड्स रिसिप्ट होना चाहिए. वेयर हाउस पीपल जीआरएन किया, फाइनेंस पीपल इनवॉइस बुक किया. तो ये तीनों फ्लो हम लोग देख पाएंगे. मतलब एमएम भी इन्वॉल्व है, वेयर हाउस भी इन्वॉल्व है, फाइनेंस पीपल इन्वॉल्व है. इंटीग्रेशन देख रहे. सेल्स में सेल्स ऑर्डर करेंगे, आउटबाउंड डिलीवरी करेंगे, बिलिंग करेंगे, कलेक्शन करेंगे. वहां पे भी तौर पे प्रोडक्शन में क्या होगा? रॉ मटेरियल है, मटेरियल किया, आप मटेरियल ने भेजा प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में कितना मटेरियल भेजा, कितना स्क्रैप हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना रिजल्ट आया, एवरीथिंग कैन विजिबल. एवरी डिपार्टमेंट 1-to-1 इंटीग्रेटेड है. इवन दो नॉट ओनली विद इन द एसएपी मॉडल, आउटसाइड आल्सो, लाइक आई टोल्ड यू बैंक, right? I told you like in GST portal, like there are lots of things.
राइट, इंटीग्रेशन इसलिए फेमस है। डाटा सिक्योरिटी है, मैंने बताया डाटा सिक्योरिटी क्यों है, ये डाटा पूरा सेफ्टी है क्लाउड में। इवन द व्हाई डाटा मोर सिक्योरिटी मींस आई एम ए प्रोक्योरमेंट टीम, सो माय कंपनी रूल इज दैट द प्रोक्योरमेंट टीम कैन नॉट व्यू एनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कोई भी अकाउंटिंग व्यू नहीं देखना है प्रोक्योरमेंट टीम, दैट इज अ डाटा सिक्योरिटी, दैट्स अ कंट्रोल, बिकॉज़ व्हाई अननेसेसरी डाटा लीक हो जाएगा, इट्स नॉट शुड बी गुड, राइट। So if that purpose company has to treat it like I'm in working as a finance team, you working as a MM team, procurement team. So Vinit could not able to see any under balances. He has to only option has to deal with the vendor, how much balance, how much everything, but it couldn't able to see vendor balance. Then that control also to be there. I couldn't provide those access to in his ID. इनका आईडी में जो होगा एसएपी का आईडी है वो रोल वो एक्सेस नहीं देंगे, नहीं देंगे तो क्या क्या दैट सिक्योरिटी है। तो आई एम ए वेंडर मास्टर डेटा क्रिएटर, मैंने कोई भी नया वेंडर आएगा तो मैं क्रिएट करना, मेरा रेडी से क्रिएट होना चाहिए, तो अप्रूवल शुड बी समवन एल्स, राजू। सो अदर पीपल कुडंट एबल टू मॉडिफाई एनीथिंग, क्योंकि पेमेंट टर्म मेरा वहां पे लिखा हुआ 30 डेज है, तो हो सकता है कि कुछ सुमित ने जाके 30 डेज में 60 डेज कर देगा, कोई 90 डेज में कर देता है, तो देयर इज अ कंट्रोल ऑल्सो नहीं। सो उस कंट्रोल करने के लिए एसएपी में एक्सेस कंट्रोल देता है डाटा सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये कंट्रोल डालने से क्या होगा, सो माई सेल्फ only can modify anything in vendor master data, nobody else in the same. It should be more control, right? So that purpose why SAP इतना demand आने कारण नहीं है। And central database, what is the meaning of central database? Central database means my team working in Australia, my team also New Zealand, my team also Singapore, my team also China, my team also Japan. Okay, everyone that timing, one timing. I am came to early morning 6 o'clock. Okay, I have posted few invoices. Same invoices I could not have इनवॉइस पोस्ट कर दिया, बट वो जहां पे ओसीआर जो टूल होता है वहां से मैंने डिलीट नहीं किया, वहां पे मतलब रिमूव नहीं किया, तो somebody else came again, how many invoice queue again the 5 invoices because I could not remove, right? So 5 invoice again वहां पे है, so somebody has to go and try to post the invoices, then system could not allow to post the original because saying that it's duplicate invoice, somebody has posted, right? It's a central data, so I have posted, somebody can view at a time, तुरंत देख सकते कि इनवॉइस ऑलरेडी पोस्ट हो गया, सो आई कुड नॉट डू द पोस्ट, दिस ऑल थिंग इज कॉल्ड ए सेंट्रल डेटाबेस, क्लियर। सेंट्रल मास्टर डेटा, सेंट्रल डेटाबेस मींस यू आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, ओके आई एम वर्किंग इन इंडिया, इनवॉइस जब स्कैन करके आपका आता है स्कैनर में, तो 5 इनवॉइस स्कैनर है, तो आप स्कैनर को देख के 5 इनवॉइस आई पोस्टेड, अदरवाइज यू पोस्टेड, ओके यू पोस्टेड 5 इनवॉइस, स्कैनर से 5 कोर्स होने के बाद ऑटोमेटिक वहां से चला जाना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गया, वहां पे रह गया, तो अर्ली मॉर्निंग में ज्वाइन हुआ, तो मेरा कितना इनवॉइस क्यू में देखेंगे, तो वो जो 5 अब नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, वो 5 अभी भी पड़ा हुआ है, बट लॉजिकली दैट ऑल थिंग्स आर टेक्निकल इशू दैट इज कीप इन द क्यू, बट लॉजिकली इट शुड नॉट, but you have posted the invoice into your system, so again it is in queue, I will try to post again same invoice, system couldn't have post because it's saying that duplicate invoice, that control to be there, that's called central database. CR is a scanner tool. हाँ, वो CR एक स्कैनर टूल होता है, तो हाँ उसको ओपन, उसका फुल मीनिंग है क्या, ओपन टेक्स्ट बोलता है इसे, OCR पूरा मीनिंग मारो कुछ पता चल जाएगा, ओपन स्कैनिंग कुछ होता है, OCR character resource, like in a tool or like in a optical character recognition. yes, there are two things, one is for OCR means one is few companies have, we are getting the mailbox, common mailbox, so in accounts payable invoice box in India, so India invoices come into that invoice, accounts payable in AU, that mail ID, so every morning you have working in 5 entity, so early morning when your first duty is go and check invoices, how many invoices there, then it keep one by one posted to go, that is one thing. Other few companies are working on OCR, so there is a third party tool, if somebody has to sitting in the office or somewhere in a scanner, they will do the scanner, otherwise vendor sending the PDF format that is scanned and come to into a queue, वो टूल में रहता है, तो वहां से पोस्ट हो जाता है, तो यू कैन रिमूव, पोस्ट एंड रिमूव, टू वे, इधर इनबॉक्स में आता है, वहां से पोस्ट, इंटरव्यू पूछता है क्वेश्चन, तो वेयर डू यू गेट द इनवॉइसेस, हाउ डू यू पोस्ट, यू नेवर से आई रिसीव द फिजिकली, when you can say physically, yes I am working also India there are a few companies, they were sending me directly in physical invoices, based on the physical invoice, it is rare case, daily 1 or 2 invoice I only post, remaining all invoice come from the OCR or inbox, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये अकाउंट्स पेबल में क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है। इसके बाद क्या है, सेंट्रल मास्टर डेटा, क्लियर राइट। सेंट्रल डेटा मींस व्हाट हैपेंड, सो सूरज इज अ वेंडर इन माय कंपनी, आई क्रिएटेड सूरज इन इंडिया एंटिटी, इट मींस Suraj I created, right? It means everybody can see in the Suraj account, vendor account. So even the foreigner also, even the sitting in anywhere,
That's a center. Once I created, it's a permanent existence. That's why master data is called as a permanent existence and transaction not a permanent existence. Master data is called a permanent existence. मतलब मेरा master data मतलब सुमित vendor code एक तो create हो गया. So Sumit is a vendor code. I created in my company code. That's a permanent until I change the registration number something else. Otherwise, he is a permanent, right? जैसे TCS कंपनी है, TCS is a permanent vendor code in my company. Until TCS इधर vendor master data में कुछ उसका नाम चेंज करेंगे, नहीं तो वो मर्ज हो जाएंगे, कोई कंपनी के साथ नाम चेंज कर देंगे, नहीं तो उसका GST चेंज हो जाएगा, नहीं तो उसका कॉर्पोरेट एड्रेस चेंज होगा. Then only I need to modify. Otherwise, no way, right? That is called. अगर TCS को मैं ऑलवेज मटेरियल परचेज कर रहा है, TCS से मटेरियल परचेज किया 50 रुपीज में, नेक्स्ट टाइम किया 100 में, नेक्स्ट टाइम कर दिया 200 में, TCS इज कॉमन है, राइट? चेंज क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन चेंज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड बाय ट्रांजैक्शन इज ए टेम्पररी ट्रांजैक्शन, परमानेंट वेंडर मास्टर डेटा इज ए परमानेंट एग्जिस्टेंस, राइट? क्लियर? टेम्पररी क्यों बोला? बार बार अमाउंट चेंज हो रहा है, बार बार हेडिंग, अभी रॉ मटेरियल कर जाए, कल सर्विस दे सकते हैं, कल और कुछ दे सकते हैं, कल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, right? There are number of things. Transaction change हो रहा है, but his name always to be TCS. That's called permanent existence. Clear? Okay. The central database also clear, right? Best business practice. I told you SAP is providing a best business practice. How? So first, go to the purchase requisition, then purchase order, then GRN, then invoice, then payment, then reconciliation. This is SAP provided standard solution, right? That we call it the best practice. In sales order through, coming to sales order through, first quotation, sales order, outbound delivery, picking, billing, and collection. SAP given a standard. Client has asked, tell you, no, we don't want to follow the SAP, whatever SAP given the standard solution. We need to develop something in before invoice posting. Before invoice posting. So they told you before invoice posting, they have need to develop. What their requirement? No, before invoice post, somebody has to park the invoice. That parked means इट इज इन बैंक में आप जाएंगे तो मेकर एंड चेकर होता है कि कोई पर्सन आरटीजीएस जो भी आप ट्रांसफर करते हैं पहले है, तो आप जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, somebody has to post the transaction, आरटीजीएस करते हैं तो अगेन somebody has to release, ऑफिसर रिलीज करता है, तब रिलीज होता है, मतलब मेकर एंड चेकर होता है. सेम लाइक एसएपी में क्या होता है, एसएपी आल्सो हैव ए पार्क एंड पोस्ट. तो आपका क्लाइंट ने क्या रिक्वायरमेंट दिया? नहीं, पोस्टिंग कुड नॉट डू डायरेक्टली बिकॉज वी नीड टू वैलिडेट. वैलिडेट क्या करेंगे? पीओ के साथ जीआरएन मैच हुआ नहीं हुआ है, जीआरएन मैच है तो इनवॉइस मैच हुआ नहीं हुआ, उसके बाद उसमें उस इनवॉइस में उस जो डॉक्यूमेंट में इनवॉइस अटैचमेंट है कि नहीं, इनवॉइस अटैचमेंट है, तब वैलिडेट करेंगे, उसके बाद पोस्ट करेंगे. मतलब वैलिडेशन एक नया चीज आ गया, ठीक है? वैलिडेशन करने के बाद इनवॉइस पोस्ट होगा. तो ये वैलिडेशन जो है एसएपी नहीं दिया, तो आपको डेवलपमेंट करना है वैलिडेशन. दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज. तो आप क्या किया? एसएपी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एक्सेप्ट करके आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट वहां पे ऐड कर रहा है, कस्टमाइज कर रहा है, उसके बाद इनवॉइस में जा रहा है. So that everything possible in best business practice. आपका जैसे बिजनेस डिसाइड करता है ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है? मल्टी कंट्रीज लैंग्वेज एंड मल्टी करेंसी, मतलब मल्टी कंट्रीज है, नंबर ऑफ कंट्रीज में से भी यूज होता है, और क्या होता है करेंसी में. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कितना कंट्री में आज का डेट में है 224. लेट्स चेक अगेन. राइट, अगेन आई एम लॉगिन. So I provide you everyone to log in SAP login ID and password. I will provide you company code. आप लोग डेली जो बताएंगे वो पोस्ट करना, ठीक है? And I provide you few physical invoices soft copy. So I will hide something, okay? GST number, vendor code, कुछ hide कर देंगे. Real time I could not provide all the data inconsistency हो जाएगा, privacy है. So कुछ मैंने वहाँ पर रिमूव कर देंगे, नहीं तो हाइड कर देंगे, तो मैंने you can post, okay? Okay, let's try. हाँ? नहीं हो रहा है. पावर पॉइंट में आप ఎవరు చెప్పారు? లేదు, డెస్క్టాప్ చేశాను మేము. స్క్రీన్ 1 కేనా నీకు? స్క్రీన్ 2 లో ఉందా? ఎవరు చెప్పారండి నీకు? మీరు ఇందులో కావాలన్నా Okay, see, so this is a company.
In a company code, currency. Oh, ho, 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 ho. Okay. Okay. तो करेंसी हाउ मेनी कंट्रीज विल सपोर्ट, हाउ मेनी कंट्रीज, यहाँ पे देखो जैसे भी आजकल में ये भी हो सकते थोड़ा पायरेसी वर्जन है, मे भी कम भी हो सकती है, इससे भी 239 कंट्रीज में एसएपी सपोर्ट कर रहा है, फिर भी मैंने उसमें कम ही दिया है, ठीक है, यूनिट टू मॉडिफाई समवेयर, कहीं पूछेंगे नहीं, अप्रोक्सीमेटली 239 कंट्रीज हो सकते हैं, डमी कोई क्रिएट कर दिया होगा, डमी सिस्टम है ना, इंडिया का प्लस ने जेड एन कर दिया होगा, वो भी हो सकते हैं, आई कुड नॉट से, ओके, बिकॉज आप नीचे आएंगे तो जेड रहेंगे, तो इसका मतलब देखो जेड, जेड आर, जेड एम साउथ अफ्रीका, जेड है साउथ अफ्रीका आता है वो, सही है, ठीक है, यूजेड, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी, इंडिया को आईएन होता है, ठीक है, रसिया, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, बट नो नीड, इंडिया, राइट, आईएन, सो लाइक दिस, हाउ मेनी कंट्रीज, 239, करेंसी, लेट अस चेक करेंसी, हाउ मेनी करेंसी, करेंसी आल्सो टेक, ओके, यहाँ पे करेंसी है, करेंसी कितना है, 221 करेंसी है, ठीक है, क्लियर, सो नाउ लेट्स कम बैक अगेन टू पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वन, इसके बाद क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, बताया एसएपी जो स्टैंडर्ड प्रोसेस देता है वो स्टैंडर्ड, मतलब एसएपी एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करता है, जब भी एसएपी में अभी नया क्या हुआ, क्लाउड बेस्ड बोल क्या है, एसएपी ऑन प्रीमिसेस ऑन क्लाउड बेस्ड बोल के एसएपी अभी नया दिया, जो कस्टमर ने ज्यादा अमाउंट एफर्ट नहीं कर पाएंगे उसके लिए एसएपी ने नया क्लाउड बेस्ड बोल के एक सिस्टम दिया, एवरीथिंग कंट्रोल इनटू एसएपी, ओके, एवरीथिंग कंट्रोल, आप ओनली एसएपी को लाइसेंस यूज करके पोस्ट करना है, तो इट इज लेस कॉस्ट कंपेयर टू ऑन प्रीमिसेस, ऑन प्रीमिसेस में जो भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, बट उसमें क्लाउड में नहीं कर पाएंगे, लिमिटेशन बहुत है, कंट्रोल ज्यादा है, एसएपी जब चेंज करने को बोलेगा आपको तब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड है, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें जो है ना एसएपी जो सॉल्यूशन दिया वही फॉलो करना है, आपका खुद का सॉल्यूशन वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है, दैट्स व्हाई कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, मैं सोचेंगे ये डेवलप कर देंगे वो डेवलप कर देंगे, नो नो वे, क्योंकि वो लिमिटेशन है, लाइक लेट्स स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये क्या है, रियल टाइम डाटा अपडेट रिपोर्टिंग, रियल टाइम डाटा मतलब व्हेन आई पोस्टेड द ट्रांजैक्शन एंड इट इज ऑटोमेटिकली एट द टाइम टुडे आई पोस्टेड विद इन द 2 minutes system can replicate that report, real time means once I posted I can extract the report, Gautam is posted in his system sitting in somewhere, I am sitting in India, so I retrieve the data, तुरंत देख सकते हैं, that is called a real time, okay, so industry specification बताया, इंडस्ट्री मतलब सॉफ्टवेयर के लिए होता है, एफएमसीजी के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, रियल एस्टेट होता है, ठीक है, सर्विस बेस्ड होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन, ऑल द इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन के लिए भी एसएपी सपोर्ट करता है, ठीक है, नेक्स्ट वन, कंट्री स्पेशल फंक्शन एंड टैक्सेशन, इंडिया है, इंडिया के लिए स्पेशल फंक्शन है, जीएसटी है, विथहोल्डिंग टैक्स है, राइट, टीसीएस है, राइट, दिस ऑल थिंग्स आर देयर, तो इंडिया के लिए सेपरेट टैक्स है, ब्राजील सेपरेट है, ऑस्ट्रेलिया टैक्सेशन, एवरी कंट्री के लिए स्पेशल टैक्स बना के रखा हुआ है ऐसे, दैट्स व्हाई एसएपी इज व्हाई एसएपी क्यों इतना डिमांड है, दिस ऑल द रीजन एसएपी डिमांड, क्लियर नाउ एवरीवन, सब क्लियर है ना, चलो व्हाट वी लर्न टुडे, तो हम लोग यहाँ पे क्यों आया, कारण है कि अकाउंट्स पेएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स पेएबल, से प्रोक्योर टू पे, मटेरियल परचेज करके पेमेंट तक जाना है ना, इसलिए पीटूपी बोलता है कंपनीज, है कि नहीं, राइट, सो व्हाट यू नीड, प्रोक्योरमेंट खरीदना है तो किस में, 90% क्रेडिट बेस, इफ इनवॉइस बेस होगा तो पीओ की सब जरूरी नहीं है, डायरेक्ट पोस्ट करो, आपको डायरेक्ट मटेरियल खरीद लिया और पीओ क्या जरूरत, राइट, आप मटेरियल डायरेक्ट खरीद लिया, आपको पैसा भी है खरीद लिया, तो पीओ बनाने के क्या है, जीआर बनाने के क्या है, देयर इज नो मीनिंग, राइट, सो द प्रोक्योरमेंट ऑलवेज ऑन क्रेडिट बेस, जब क्रेडिट बेस में तभी तो क्वेश्चन आएगा, राइट, प्रोक्योरमेंट ऑन क्रेडिट, देन क्या होगा, मटेरियल खरीदने के बाद इनवॉइस होना चाहिए, प्रोसेसिंग सिस्टम, उसके बाद क्या होगा, पेमेंट होगा, nowadays companies accounts payable looking into two function, one is for invoice processing people, one is for payment processing people, okay, तो इनवॉइस जो पीपल इनवॉइस में जाना है, इनवॉइस प्रोसेसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट तो व्हाट माय इज इंटेंशन इज टू लर्न बोथ टुगेदर, बिकॉज दैट इज मोर एडवांटेज इन योर रेज्यूमे, राइट, if you go to interview, somebody is putting in their resume only for invoice processing, you put a invoice and payment, then you are a more demand compared to them, because why, because you know the two functions, the client, the manager can use you, they can
use, they can have utilized for you as invoice processing, as a payment processing, and you also have getting a good knowledge on both area, right? So in future it is advantageous for a team lead and P2P lead and P2P जो भी senior associate जो भी है वो चीज हो सकते हैं. I see many people in the procurement P2P cycle में जो 20 लाख से भी ज्यादा है P2P lead में, more than 20 lakhs मैंने ओनली P2P साइकिल में देखा है. मतलब मैंने देखा और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बट मेरे को जो इंट्रैक्शन हुआ है मोर देन 23 24 तक गया ओनली P2P लीड में. ओके, नेक्स्ट द टीम इन्वॉल्व इन P2P प्रोसेस. ऑनलाइन पीपल, इज इट ओके? माय स्क्रीन विजिबल ऑनलाइन? Yes, yes, visible. Okay, right. So team involved in P2P process, huh? Okay. Team involved in P2P process. Who are the people? Who are the team members involved, right? P2P में कौन कौन टीम इन्वॉल्व होता है? जनरली यू आर लेन कौन कौन होता है? प्रोक्योरमेंट टीम इन्वॉल्व एंड कौन होता है? वेंडर, थर्ड पार्टी क्यों इन्वॉल्व होता है? डॉक्यूमेंट के लिए. मतलब क्या होता है, समझो मैंने कोई मटेरियल, मेरा कंपनी है, आई हैव डील विद द वेंडर थर्ड पार्टी, मैंने उससे मटेरियल कर दिया, सो एन XYZ कंपनी से, एन XYZ से मटेरियल कर जाए तो XYZ ने क्या बोलेगा, मेरे कंपनी का रूल है एवरी डॉक्यूमेंटेशन टू बी देयर इनटू वेंडर थर्ड पार्टी. तो वो क्या है, उसका पैन नंबर होना चाहिए, उसका बैंक डिटेल होना चाहिए, उसका GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, उसका क्वालिटी कुछ भी है, उसका होता है, कुछ कंपनी का रिक्वायरमेंट है जो प्री रिक्विजिट होता है, डॉक्यूमेंटेशन सब चाहिए. तो उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेंडर को इन्वॉल्व होकर वेंडर को डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है. देन यूजर्स मींस वो आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन. कौन कौन हो सकते हैं ना, इनवॉइस टीम में इनवॉइस पीपल हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट में प्रोक्योर टीम हो सकते हैं, वेयरहाउस टीम में वेयरहाउस पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है. दैट्स कॉल्ड प्रोक्योरमेंट टीम. कैसे प्रोक्योरमेंट टीम इन्वॉल्व होगा? और वेंडर मास्टर डेटा टीम विल क्रिएट ए वेंडर मास्टर डेटा. यू विल सो वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करना भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे. मतलब सिस्टम में सेंड्री क्रिएटर को क्रिएट करना है. वी नेवर कॉल्ड ए सेंड्री क्रिएटर, वी विल कॉल्ड एज ए वेंडर. सो आई विल टीच यू योर कि वेंडर हाउ टू क्रिएट ए वेंडर मास्टर डेटा इन एज वेल एज आई टीच यू इन द बिजनेस पार्टनर. तो बिजनेस पार्टनर ये S4HANA में सपोर्ट होता है. S4HANA सर्वर में मैंने वो सर्वर आईडी किसी को नहीं देंगे क्योंकि देयर इज टू मच कॉस्ट. सो आप लोग बेर भी नहीं कर पाएगा, मैं भी दे नहीं पाएंगे, ठीक है सर. पर मंथ 4000 से ज्यादा रहता है S4HANA सर्वर, सर यूज कॉस्ट है, ठीक है. तो मैं ओनली मेरा आईडी है उसमें मैं लॉगिन करके आपको दिखाएंगे. ओके, तो यू विल प्रैक्टिस नॉट बिजनेस पार्टनर, ओनली विल क्रिएट व्हाट वेंडर मास्टर डेटा आप क्रिएट कर सकते, वो एक्सेस देंगे, ठीक है. तो दैट इज डिफरेंट टूल S4HANA, ठीक है. वहां पे मैं समझाएंगे कि बिजनेस पार्टनर क्या है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू यू विल से यू आर पुटिंग अ नॉलेज, आई हैव अ नॉलेज ऑन वेंडर मास्टर डेटा विद अ बिजनेस पार्टनर. यू पुट दैट लाइन, at least that is advantage for you. Okay. Vendor master data means all the vendor information we need to put into somewhere, create a master data, right? I will teach you. Vendor means in master data means permanent existence, like ledger create करते हैं ना accounts में. Vendor sundry creator एक ledger create करते हैं ना, राम एक ledger है, श्याम एक ledger है. Same like vendor master data will create system. SAP में सभी मास्टर डेटा, GL मास्टर डेटा, वेंडर मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर मास्टर डेटा, ऑल यू कॉल मास्टर डेटा. मास्टर डेटा मींस लेजेस. वी विल लर्न सम मास्टर डेटा हियर इन अकाउंट्स पेबल रिलेटेड मास्टर डेटा जो है वो सिखाएंगे, ठीक है. चलो, अकाउंट्स पेबल टीम इन्वॉल्व होगा, इनवॉइस टीम एंड पेमेंट टीम. अकाउंट्स पेबल इनवॉइस टीम इन्वॉल्व होगा और पेमेंट टीम इन्वॉल्व होगा. सो यही टीम पीपल P2P में इन्वॉल्व होता है. इन इंटरव्यू आपको पूछ सकते हैं, so which team involved in P2P? You can say procurement team and accounts payable team, accounts payable invoice and payment team. Okay, you can say warehouse team also sometime involved, so based on the requirement. तो मैं एकदम 4 टीम, एक procurement, एक होता है warehouse, एक होता है invoice, मतलब accounts payable team. मास्टर डेटा वो अलग टीम होगा तो मास्टर डेटा. सम कंपनी क्या करते हैं, P2P जो लीड होता है, you will never create any transaction. Always remember this point. If interview asks, do you have a I access for vendor master data and the posting transaction both? You can say no. I have access only for invoice, not for master data. Because in SOD, segregation of duty, as per segregation of duty, मतलब SAP में एक कंट्रोल है. अब बड़ा कंपनी में ऑडिट होता है, E&Y कंपनी, PwC कंपनी, Deloitte कंपनी ऑडिट होता है, उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कंपेयर करता है. सूरज हैव टू क्रिएट एक्सेस फॉर वेंडर मास्टर डेटा, सूरज आल्सो पोस्टिंग इनवॉइसेस, देन इट इज SOD. मतलब क्या है SOD? मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं करना चाहिए. अगर सूरज क्रिएट कर देंगे किसी को नया वेंडर मास्टर क्रिएट करके, उनका एग्नेस्ट में इनवॉइस बुक कर देगा, वेयर इज द कंट्रोल, राइट? सो दैट इज व्हाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. एंड देयर आर कंपनी इनवॉइस जिसका पास रहेगा, पेमेंट उसका पास नहीं रहना चाहिए. मींस यू बोथ पीपल हैव नॉट इनटू separate team, then okay,
You people only work, suppose Sirisa has a invoice posting and you have access for payment also. Yes, it is also segregation of duty because आप invoice post करके किसी को payment दे देंगे. Where is the control? So this is all called for SOD. You can say it like this. This is a terminology you need at the time of interview. आप जब इंटरव्यू में जाएगा somebody will ask do you have a knowledge you have putting in your resume invoice and payment both are knowledge do you have access for both you can say no I have worked in the some client project so there I worked only for process and some other project I worked in a payment process I have a knowledge on both but in current company I have only invoice process or also payment process whatever your situation based on the आपका knowledge के हिसाब से वो बता देना you never say yes I have both access right because why वो पूछेगा because why because as per my company it's a segregation of duty SOD clear everyone let's come to the next part so what is the procurement to pay eye level overview okay आइए अभी तक जो सीखा है कि क्या सीखा है nothing you learn something right what Gautam what we learn we learned something right हम लोग क्या सीखा कौन सा टीम इन्वॉल्व होगा और एसएपी क्यों है व्हाई एडवांटेज एसएपी कब हुआ ईआरपी क्या है दिस ऑल थिंग्स लर्न सो नाउ ऑन वी विल लर्निंग पर सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब P2P क्या है P2P में बताया था कौन सा टीम इन्वॉल्व होगा क्या प्रोसेस है P2P में प्रोक्योरमेंट होगा इनवॉइस प्रोसेस होगा पेमेंट होगा दिस इज ओनली शॉर्ट थोड़ा आई लेवल में जाके पढ़ेंगे अभी परचेज रिक्विजिशन होगा परचेज रिक्विजिशन बेस्ड ऑन द परचेज रिक्विजिशन मतलब क्या है एनीवन ऑनलाइन पीपल आल्सो नॉट ऑर्डर परचेज रिक्विजिशन मींस Requesting goods for something which we need. यस प्लीज Requesting goods for something which we need. right so suppose I am an engineer okay I have doing my construction work example so I need to extension some road some bridge right so some there is a situation it will came for the particular point since I don't have a material मेरे पास material नहीं है cement नहीं है steel नहीं है right but I need to extend this road I require these all things bridge suppose I require a cement and steel some चाहिए material चाहिए तभी मैं road को bridge को extension कर पाएंगे जो particular place में आके I can there is no material that's why I can stop that there so what I can do I can put an indent मैंने एक indent लिखेंगे indent we call this indent in indent what we mention I need a 50 bag I need a steel or few cages right I will put an indent I will put the signature I will send to warehouse team first indent we call it as an indent so that indent goes to where warehouse people have to check either that material is available in the stock or not if the material is available to the stock then it's good fine they will send back to us in my place then I will start with my construction right if the material is not available then start the process what they go for purchase requisition if the material is available then they will send back to us right if the material is not available material नहीं है उनके पास then what will they will go for order right they will go for new खरीदना है तो खरीदने के लिए क्या करना है they will again choose the purchase requisition so इतना material चाहिए 100 बैग चाहिए इतना स्टील चाहिए whatever they required they will purchase quotation में लिखेंगे it will send to few vendors 1 2 3 vendors को भेजेंगे why they will sending 3 vendors because they will check the quality quotation payment term all this as per company purchase order जब create होता है purchase requisition may be once but purchase order at least आप एक order create करने के पहले आपको कंपनी का ऑडिट एज पर ऑडिट पॉइंट 3 to 4 वेंडर सेलेक्ट करके फाइनलाइज करना पड़ेगा देन अगर नहीं है तो परचेज जो टीम टॉप होता है समथिंग इज गैम्बलिंग कुछ किया है कुछ कमीशन बेस किया है बोल के पकड़ता है दैट शुड बी रीजन दे हैव टू सेलेक्ट 3-4 वेंडर परचेज कोटेशन भेज दिया बेस्ड ऑन द कोटेशन बेस्ड ऑन द परचेज रिक्विजिशन इस मटेरियल खरीदना इतना खरीदना ये करना दे दिया मटेरियल बेस्ड ऑन द परचेज रिक्विजिशन दे विल रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पूछेगा श्रीशो को भेज दिया विनीत को भेज दिया सूरज को भेज दिया विशाल को भेज दिया 4 आदमी को भेज दिया मैंने ठीक है आई विल सेंड माय परचेज रिक्विजिशन बेस्ड ऑन द परचेज रिक्विजिशन आई गेट द कोटेशन आप 4 से मेरा कोटेशन आ गया तो इन द 4 पीपल से मेरा कोटेशन बैक आ गया बेस्ड ऑन द कोटेशन आई नीड टू चूज व्हिच वन इज बेस्ट एज पर प्राइस एज पर क्वालिटी एज पर टाइम एग्रीमेंट एवरीथिंग राइट क्या क्या है परचेज ऑर्डर में कि एग्रीमेंट है पेमेंट टर्म क्या है कितना दिन में क्रेडिट देना है क्या नहीं एवरीथिंग आई डिस्कस बेस्ड ऑन दैट आई नीड टू चूज वन राइट एक आदमी को चूज करना है दैट उस आदमी को चूज करके देन आई विल क्रिएट ए परचेज ऑर्डर then what I will create a purchase order
once the purchase order create, again the company has a procedure and follow approval based. Purchase order create किया तुरंत GRN नहीं आएगा. Some कुछ कंपनी क्या होता है, बिग कंपनी, दे हैव ए परचेज अप्रूवल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. मतलब आपका परचेज वैल्यू 10 लाख से कम है तो नो नीड टू अप्रूवल. 10 लाख से ज्यादा है तो परचेज मैनेजर के पास अप्रूवल जाना है. अगर 1 करोड़ से ज्यादा है कंपनी CFO को जाना है. अगर 2 लाख, अगर वो करोड़ों में है, इट विल गो टू CMD assembly. लाइक दिस द लेवल ऑफ अप्रूवल. नहीं तो कहाँ पे कंट्रोल कुछ नहीं है ना. तो द CMD ओ सपोज आई क्रिएटेड ए 30 लैपटॉप्स, ओके, परचेज ऑर्डर, so my manager is approved it, then CFO second approval. CFO saying already old employee laptops is there, why unnecessary creating, let's decline that order. He has rejected that order. It means again back to first person saying that, so no need to require any new laptop because budget everything is so okay. So do one thing, you will arrange for old laptop to give them. ठीक है, old laptop कभी कभी होता है. ठीक है, so these all things happen in the purchase order level. Approval based होता है. Once purchase order created, क्या होता है, vendor क्या होता है, आपको metal बेचता है, right? That is called a GRN. In SAP you called as a MIGO, 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 you called as a MIGO, MIGO. Okay, so material receipt or goods receipt, you called as a material, तो material और goods स्टोर पे आ जाएगा, right? Once स्टोर पे आने के बाद क्या होगा, स्टोर में आ गया तो material आ गया, material has received into your store, material आ गया तो हो गया क्या? So where do you get the material? material आया तो क्या होगा, material come into your store, what should be entry क्या होना चाहिए जनरली? मटेरियल आपके पास आया है तो क्या होना चाहिए, एंट्री. इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपके पास आया तो क्या होना चाहिए, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ठीक है, GRI बाद में, वो तो आपको पता है. लाइक जनरल एंट्री क्या, मटेरियल अकाउंट वेंडर अकाउंट होता है. बट SAP क्या बोलता है, मे भी इनवॉइस राइट टाइम में नहीं आता है, इसलिए उसको वेंडर नहीं ट्रीट करता है, उसको बोलता है GRI क्लियरिंग अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट होता है, वो SAP ट्रीट करते हैं. क्यों करते हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग सीखेंगे. ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पढ़ेंगे क्यों GRI क्लियर, क्यों वेंडर है. जनरली क्या होता है, मटेरियल आपका पास इन्वेंट्री है, सी सिंपल लॉजिक, व्हेनेवर यू गेट दी एनी एसेट, एसेट ऑलवेज इंक्रीज, इट मीन डेबिट. एसेट इंक्रीज होगा ऑलवेज डेबिट, अपोजिट. लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, अपोजिट है. वेंडर को 10 रुपया देना है, नेक्स्ट वेंडर को 20 रुपया देना है, इसमें वेंडर ऑलवेज क्रेडिट. वेंडर को डेबिट होना मतलब क्या है, डेबिट आएगा. एसेट ऐसे, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट. सिंपल, एसेट रिलेटेड यही पकड़ लेना. वेंडर इंक्रीज, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, सिंपल. ठीक है, सो इन्वेंट्री एसेट है, राइट, तो इन्वेंट्री डेबिट में आ गया. आपका इन्वेंट्री कहां से है, वेंडर से है, बट यू हैव नेवर पोस्टेड वेंडर अकाउंट. व्हाई वेंडर अकाउंट में समटाइम क्या होता है कि मैच, जनरली हम लोग अकाउंट में सीखने के बाद यही एंट्री मारते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर. वैसे भी व्हाई यू आर नॉट कनेक्टिंग, ड्यू टू देयर इज ए P2P साइकिल, 3-2P साइकिल, सब साइकिल है. मतलब मटेरियल क्या सही है कि नहीं, मटेरियल डैमेज है कि नहीं, मटेरियल इंस्पेक्शन में पास हुआ कि फेल हुआ है, ठीक है, क्वालिटी में सही है कि नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग रीजंस, पेमेंट टर्म सही है कि नहीं, एवरीथिंग वी नीड टू चेक. दैट्स व्हाई SAP बोलता है इसको एक टेम्पररी अकाउंट कर दो, बाद में जब इनवॉइस फाइनल एंट्री होगा तो उसको टेम्पररी अकाउंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा. इसीलिए क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल व्हाटएवर, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR अकाउंट. GRIR मतलब goods shipped as invoice shipped. Sometime why invoice shipped come, because sometime what happen, you have not received the goods but invoice has received first. For what situation, अगर आप एक साउथ अफ्रीका कंट्री में है तो साउथ अफ्रीका को चारों बगल से समंदर है, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कहीं से मटेरियल लेके आना है तो इट विल टेक टाइम, पर ओशियन में आएगा ना तो टाइम लगेगा, 10 दिन 15 दिन लगेगा. आपका इनवॉइस क्या होगा, वहां मटेरियल भेज दिया, स्कैन कॉपी तुरंत भेज दिया, इनवॉइस तो 2 मिनट में आ जाएगा मेल पे, बट गुड्स आने में 10 ट्रांजिट में रहेंगे ना, तब व्हाट यू डू, तो इनवॉइस ऐसे पेंडिंग लगेंगे. यू नीड टू बुक द इनवॉइस सम टाइम. दैट इज द रीजन आपको चेक करना है, इनवॉइस बुक होना चाहिए बट यू नेवर डू द पेमेंट, बिकॉज व्हाई, गुड्स अब तक आया नहीं है फिजिकली. दैट इज वेयर GRI क्लियरिंग अकाउंट टेम्पररी अकाउंट में बनाना पड़ता है. जब तीनों मैच हो जाएगा तब ऑटोमेटिक नलिफाई हो जाएगा. आओ, एंड वेयर सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में नहीं होगा क्लियर तो कैसे करना वो भी पढ़ाएंगे हम लोग. ठीक है, GRIR कभी कभी मिसमैच होता है तो ऑलवेज SAP बोलता है GRIR ऑलवेज टू बी क्लियर होना चाहिए. कभी कभी हो सकते नहीं है, वेंडर ने क्या किया, इनवॉइस 10 क्वांटिटी भेज दिया, इनवॉइस का 10 क्वांटिटी अमाउंट, बट फिजिकली आपको क्या है 9 क्वांटिटी आया, एक क्वांटिटी डिस्पेंस है ना, एक क्वांटिटी डिस्प्यूट है यहाँ पे, तो एक क्वांटिटी जिंदगी में कभी नहीं देगा सबको, तब क्या करना है, एक क्वांटिटी आ गया तो क्या करना है. ऑल दिस सिनेरियो विल लर्न इन प्रैक्टिकल सेशन. GRIR क्यों टेम्पररी रख रहा है उस टाइम में सीखेंगे. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिसीव. वंस मटेरियल होने के बाद इनवॉइस प्रोसेसिंग होगा, इनवॉइस प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, पेमेंट देना है, पेमेंट होगा, पेमेंट देने के बाद रिकॉन्सिलेशन मीन चेक करेंगे
इधर सही वेंडर का हुआ नहीं है रिकॉन्सिलेशन, उसका रिपोर्ट हम लोग रिपोर्ट मैच हो रहा नहीं हो रहा है, फिर मैच नहीं हो रहा तो क्या करना है। सपोज वेंडर ने एक स्टेटमेंट दिया तो 5 लाख रुपीज उनका स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट से 4 लाख रुपीज है, इट इज ए मिसमैच बिटवीन द बोथ द बुक्स ऑफ अकाउंट। देन फर्स्ट इंटेंशन क्या है, एज एन अकाउंट्स पेबल टीम इंटरव्यू में पूछेंगे तो व्हाट विल डू, आप पहले चेक क्या करें अकाउंट्स पेबल टीम में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं उसका स्टेटमेंट 5 लाख है, आपका स्टेट बुक्स ऑफ अकाउंट से 4 लाख आ रहा है, 1 लाख डिफरेंस है, तो वाई डिफरेंस, क्या कारण है, एनीवन? मिसमैच हो रहा बैलेंस, क्यों, क्या कारण हो सकते हैं, एनीवन? सोच के बताओ, स्लो वन बाय वन। परचेज ऑर्डर को मतलब जो क्वांटिटी है या जो हम लोग लेते थे उसमें डिफरेंस को लेकर हो सकता है एक चीज है ना, और परचेज ऑर्डर में आपका जो जो भी अमाउंट है, जो भी क्वांटिटी है, जो भी मे बी रॉन्ग हो, कोई क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, एक क्वांटिटी कम हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट या प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, तो मैच करना पड़ेगा परचेज ऑर्डर और आपका ये जीआरएन से, और प्रॉपर उससे मैच करना पड़ेगा तीनों। अगर मे बी ज्यादा कम होता है तो आपका रिकॉन्सिलेशन मतलब बैलेंस में जो हमारे जो पर्सन होता है उससे बात करना पड़ता है कि ज्यादा कम क्यों हुआ, और फिर से एक बार चेक होता है, नेक्स्ट क्लास को ना टाइमिंग चलो बता देंगे 1 वो मिनट। भी मैच होता है उसके। नेक्स्ट बैच का टाइमिंग चेंज करनी है, भूल गया, 12:30 लगेगा 1 मिनट। एनीवन जय? हाँ, डुप्लीकेट इनवॉइस के हिसाब से नहीं होगा क्योंकि एसएपी सिस्टम में है ना, तो एसएपी सिस्टम में हो सकते हैं डुप्लीकेट इनवॉइस उनका हिसाब से, बट हम लोग हिसाब से नहीं हो सकता है वो डबल इनवॉइस उसका बुक्स में रिकॉर्ड कर दे, ये भी हो सकता है क्योंकि नंबर से यूनियर बुक्स है क्योंकि हम लोग को बुक्स में कंट्रोल है। हाँ हो सकता है डुप्लीकेट इनवॉइस उन्होंने डाल दिया हुआ, ये होगा। और क्या है? And yeah, sometimes like we receive 5 lakhs of purchase order, but in earlier we post 1 lakh of invoice. There may be a partial invoice or something. that is already covered question. Okay. एंड बस सही है, आप लोग पेमेंट दे दिया वेंडर को बट वेंडर ने रिकॉर्ड में नहीं किया हुआ, एक नहीं हो सकता है, हाँ ये नहीं होगा। हो सकता है कि आपने इनवॉइस बुक्स में एंट्री नहीं किया, वो एंट्री कर दिया, ये भी हो सकता है। बहुत सारे आपने पेमेंट दे दिया उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो भी हो सकता है। एक हो सकता है आपने ही इनवॉइस पोस्टिंग करना भूल गया, एनीथिंग विल हैपन। सो इंटरव्यू में पक्का क्वेश्चन है, अकाउंट्स पेबल टीम में 100% दिस क्वेश्चन। अब कोई पेश किया तो रिसेंटली आया कि नहीं आया पता नहीं, आया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। यू कैन से दीज ऑल एग्जांपल, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, क्या करेंगे, एवरीथिंग विल लर्न। ओके, सो नेक्स्ट, अभी तक तो हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ाया नहीं, क्या है परचेज इक्वेशन क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन मतलब क्या, मीनिंगफुल मीनिंग समझ में आ जाता है तो पढ़ लेना। कोई कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा क्या? इट इज ए डॉक्यूमेंट जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन और द ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड द टाइम फ्रेम, राइट? यही है ना कि इतना क्वांटिटी चाहिए इतना टाइम में चाहिए, क्योंकि उतना टाइम उतना क्वांटिटी नहीं चाहिए तो वो ब्रिज कैसे बनाएगा, राइट? वो भेज दिया इंडियन भेज दिया, 1 साल के बाद ब्रिज कैसे रहेंगे, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट, राइट? एक्सटेंड करना पड़ेगा तो उसको टाइम होगा ना, इतना टाइम में चाहिए। तो समर होगा, रेनी सीजन में तो क्या होगा, देयर इज नॉलेज, दीज ऑल थिंग्स दे हैव मेंशन्ड, इतना दिन में चाहिए, ठीक है? सो इसका मतलब क्या है, परचेज रिक्वेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट है जनरेटेड बाय प्रोडक्शन और ऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन टीम हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए, ऑपरेशन टीम हो सकता है, सेंडिंग द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मतलब कौन है, किसको भेजेगा, प्रोडक्शन टीम, मतलब प्रोडक्शन के लिए चाहिए। समझो कि एक मैन्युफैक्चरिंग मेरा फिनिश्ड गुड्स बनाना है, आई नीड टू मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड गुड्स, आई नॉट हैव ए सफिशिएंट मटेरियल, देन प्रोडक्शन टीम भेजेंगे। ऑपरेशन टीम मतलब जो इंजीनियरिंग है वो ऑपरेशन टीम हो गया, दोनों सिचुएशन कोई भी हो सकता है, राइट? तो किसको भेजेंगे, वो सेंट टू वेयर प्रोक्योरमेंट टीम को भेजेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे वो लोग, एक्चुअल लॉजिकली वो लोग किसको भेजेंगे, वेयरहाउस को भेजेंगे। वेयरहाउस में मटेरियल नहीं है, वेयरहाउस क्या करेंगे, प्रोक्योरमेंट को भेजेंगे। कभी कभी क्या होता है, वेयरहाउस टीम को नहीं जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट को भेज देता है क्योंकि पता है सिस्टम में। अभी तो मैं बोला ना ईआरपी एंटरप्राइज ऑल फंक्शन मॉडल है, सिस्टम में देखे पता चल जाएगा मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल इज अवेलेबल देन यू कैन सेंड टू वेयरहाउस। मटेरियल नहीं है उसको पता है स्टॉक नहीं है क्योंकि फिजिकली कैन विजिबल है। एंटरप्राइज एसएपी में क्या बोला है, एवरीथिंग एवरीवन कैन विजिबल, राइट? सेंट्रलाइज डाटा है तो चेक कर सकते हैं। अगर इसमें मटेरियल नहीं है तो क्या करना है, उस टीम पे का टाइम वेस्ट है, अननेसेसरी डायरेक्टली सेंड टू प्रोक्योरमेंट टीम, राइट? सो दिस थिंग्स आर हैपन। क्वालिटी एंड प्राइम चाहिए कितना दिन में, ऑन द बेस ऑफ द परचेज रिक्वेशन एंड प्रोक्योरमेंट टीम स्टार्ट द एक्सप्लोरिंग द वेंडर। वो लोग उसका बेस के हिसाब से वेंडर को ढूंढेंगे। टी कोड है जो, सो यू नेवर एंड अप क्रिएट ए परचेज रिक्वेशन। हम लोग परचेज रिक्वेशन कभी नहीं क्रिएट करेंगे, ओके? इंटरव्यू में कभी पूछेगा
कि आई हैव आइडिया अबाउट द परचेज रिक्वेशन बट आई नेवर एंड नेवर क्रिएट द परचेज। आई हैव व्यू एक्सेस। आप क्या बोलेगा, मेरे पास व्यू एक्सेस है, देखने के लिए एक्सेस है, डिस्प्ले एक्सेस है, बट पोस्टिंग एक्सेस नहीं, क्रिएशन एक्सेस नहीं। बताए परचेज रिक्वेशन भी, परचेज ऑर्डर भी, जीआरएन भी, ये तीनों हम लोग के पास सेक्शन है। तीनों क्या होता है, डिस्प्ले एक्सेस। क्यों, आई नीड टू चेक दी। आप लोग पूछेगा क्यों क्रिएशन एक्सेस नहीं है, क्यों आपके पास व्यू एक्सेस है, तो बोलना है कि सो इफ आई प्रोवाइड एक्सेस फॉर ऑल देन इट इज एसओडी एज पर माय कंपनी रूल्स एज एसओडी। आई हैव ओनली व्यू एक्सेस बिकॉज आई नीड टू चेक द 3-way एंड 2-way मैच। 2-way 3-way चेक करने के लिए बस व्यू एक्सेस है। विदाउट दोज आई कैन नॉट चेक द माय इनवॉइस प्रॉपर्ली। दैट्स व्हाई आई हैव ऑल द व्यू एक्सेस। आई डोंट हैव एनी क्रिएशन एक्सेस अप टू जीआरएम। इनवॉइस एस वी हैव इनवॉइस एक्सेस, एंड इनवॉइस नहीं तो पोस्ट कैसे करेंगे, राइट? क्लियर है? चलो एग्जाम्पल, XYZ कंपनी है, ट्रेडिंग बिजनेस है, रिक्वायर है 1000 मैन टी शर्ट चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट स्लाइड जा रहा है, पक्का 12 बजे बंद कर देंगे। रिक्वेशन फॉर कोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव्ड द प्रोक्योरमेंट टीम आस्क्ड वेंडर टू सबमिट द कोटेशन। क्या बोलेंगे, वेंडर को कोटेशन पूछेंगे, राइट? कोटेशन पूछेंगे, फाइनलाइज द वेंडर अकॉर्डिंगली। उसका बेस्ट क्या करेंगे, कोटेशन के हिसाब से फाइनलाइज करेगा, किसको, मेरे को सेलेक्ट करना है, विच वेंडर इज बेस्ट फॉर क्वालिटी एंड प्राइस एंड टाइम फ्रेम एंड क्रेडिट लिमिट, ऑल दिस एंगल चेक करके प्रोक्योरमेंट डिसाइड करेगा, यस ही इज द बेस्ट पर्सन, देन दे विल क्रिएट एग्निस्ट टीम एज अ परचेज ऑर्डर। दिस इज द प्रोसेस। क्लियर है? डाउट है? राइट? एटलीस्ट क्या 3 लेवल, ये कंपल्सरी रूल है, अकाउंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल है, एटलीस्ट 3 वेंडर को सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वेंडर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन परचेज मैनेजर को गिरेगा ऑडिट में कि व्हाई यू चूज ओनली वन वेंडर, वेयर इज द रिक्वेशन कोटेशन, इट मींस समथिंग इज बिटवीन यू एंड वेंडर, कमीशन बेस्ड कुछ, दैट्स व्हाई इट्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, फॉर एग्जांपल ऑफ द कंपनी रिसीव्ड द कोटेशन, पिक्सल कंपनी से इतना आया, लीकार्ड से इतना आया, फेबिकॉन से। अभी ये तीनों कंपनी तीनों रिक्वायरमेंट दिया, एक कंपनी 500 रुपीज दिया, एक कंपनी 600 दिया, एक कंपनी 550 दिया, तो इसमें से बेस्ट कौन चूज करेगा? आप लोग पिक्सल चूज किया, तो सेम लाइक ऐसे ही होता, ठीक है? व्हाट इज परचेज ऑर्डर? परचेज ऑर्डर यही इंपॉर्टेंट चाहिए। तो परचेज ऑर्डर इज अ लीगल एग्रीमेंट है। क्यों परचेज ऑर्डर लीगल एग्रीमेंट बना? एग्रीमेंट क्यों बन रहा है बिटवीन द बायर एंड सेलर? मैंने कोई परचेज ऑर्डर कर दिया, ठीक है, मैंने बोला विनीत को, बोले कि आपने मेरे को 100 लैपटॉप दे देना, तो मैंने क्रेडिट कुछ नहीं दिया, पैसा कुछ नहीं दिया, 100 लैपटॉप में मेरा परचेज ऑर्डर खरीद लिया, बाद में बोला मेरे को नहीं चाहिए, तब लॉस हो गया कि नहीं? तो इसीलिए कोर्ट पे जा सकते हैं, एग्रीमेंट होगा तो लॉस हो गया ना, तो 100 लैपटॉप कहाँ रखेगा? कोई कस्टमर नहीं मिलेगा इसको सेल करने के लिए, हाँ? फिर इसका 100 लैपटॉप इसका घर में क्या करेगा? दैट्स व्हाई परचेज एग्रीमेंट ऑलवेज एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के साथ पैसा नहीं देगा तो कोर्ट में जाता है, कभी कभी कोर्ट में कंपनीज केस होता है ना, ये सब रीजन से होता है, ठीक है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर टू जनरेट फॉर बायर, बायर जनरेट करेगा, है ना, हम लोग करेंगे, वी आर परचेजिंग ए मटेरियल, सो वी आर जनरेटिंग, दे विल नॉट जनरेट, दे विल जनरेट ए सेल्स ऑर्डर, वी विल जनरेट ए परचेज ऑर्डर, हम लोग परचेज ऑर्डर करेंगे, ठीक है? इट कंटेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, एग्रीड प्राइस कितना एग्रीड है, बैंक डिटेल्स, जीएसटी नंबर, पैन नंबर क्या है, गुड्स क्या है, डिलीवरी कब देना है, कहां देना है, एवरीथिंग वी नीड टू पुट हियर, ठीक है? ये सब चीज मैं बताएंगे आपको जब एसेट में पीओ क्रिएट करेंगे, बताएंगे। आई विल क्रिएट ऑल दिस बट यू नेवर ट्राई इट बिकॉज, ठीक है, क्योंकि आप लोग कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो अच्छा है, मतलब इस सिस्टम में, डमी सिस्टम में, बट इंटरव्यू में कभी मत बताना, प्रैक्टिस करते करते ये नहीं बोल देना, जैसे किसान, आई थिंक किसान यार इन द कॉल, वो बता दिया एक टाइम में, Yes, Anya. यस, तो ऐसे नहीं बताना, ठीक है? तो पता चलेगा लड़का प्रैक्टिस करके आया है ना, कभी कभी पकड़ता है ऐसे, हाँ ठीक, आई पता प्रैक्टिस जैसे इंटरव्यू प्रैक्टिस में, आई विल क्रिएट अ मास्टर, आई विल क्रिएट फॉर इट विल हैपन। ये भी पूछता है ना कि कोर्ट में इंसान को किए हो तो एक ही चीज की है, ऐसे पूछता हाँ। है कि एक ही चीज की है। एक बंदे को 7 years का एक्सपीरियंस, इसीलिए तो रेज्यूम क्या करेंगे, यू हैव 6 years एक्सपीरियंस, 3 years एज अ पेमेंट, 3 years एज इनवॉइस, सिर्फ इनवॉइस पर किए हो और पेमेंट किए, बस यही किए। तो मैं 5 को कर रहा है, तो आई हैव वर्किंग ऑन द रिमेनिंग थिंग आल्सो। वो चाहता है एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा तो बोल रहा है, आई हैव नॉलेज ऑन जीएल मास्टर डेटा क्रिएशन, आई हैव नॉलेज ऑन वेंडर मास्टर डेटा, आई हैव नॉलेज ऑन कॉस्ट सेंटर, ऑल थिंग्स यू पुट इन रिज्यूम। हाँ तो डा बस, हाँ डेली आई हैव गेट 60 to 70 इनवॉइस, डेली आई एम पोस्टिंग 60 to 70 इनवॉइस, बोल दे इंटरव्यू। I need to track every invoice for different entity, different taxes. मैं 5 entity में काम करता हूँ, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, so I will check every invoice before posting all the taxes as per country में। उस फोन 5 कंट्री है, पहले डिसाइड कर लेना उस कंट्री का टैक्स क्या लिखना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक ही टैक्स है,
न्यूजीलैंड में 1 ही टैक्स है, हांगकांग में 3 टैक्स है, इंडिया में आपको पता है 3 टैक्सेस है। ये सब चीज आप नोट कर लो बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। कौन सा 5 कंट्री एकदम ब्रेन में लग लेना, एक्सेल में कहीं भी लिख लो 5 कंट्री का टैक्स क्या है, ठीक है। देखो इट जनरेट है, ये जब सब डिटेल के साथ भेजेंगे। इसके बाद टी कोड एसेट में क्या है, एमई 23N हम लोग चेक करने के लिए, नॉट क्रिएशन के लिए। क्रिएशन के लिए एमई 21N, क्रिएशन आपको जरूरी नहीं है, मैंने बोला ओनली व्यू करने के लिए। टी कोड पूछता है सब, इसीलिए मैंने टी कोड मेंशन किया, ठीक है। 1-2 इंटरव्यू जाएंगे तो आप लोग पता चल जाएगा आप लोग क्या सीखा है, क्या इंटरव्यू पूछता है, ठीक है। आप लोग इतना सीखने के बाद इंटरव्यू, मेरा जितना स्टूडेंट अभी क्लियर कर रहा है मेरे को समझ में आ रहा है कि आराम से हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो स्टैंडर्ड पीओ, पीओ में बहुत टाइप्स ऑफ पीओ है। एक होता है स्टैंडर्ड पीओ। स्टैंडर्ड पीओ मतलब प्राइस क्वांटिटी सब देना होता है। कॉन्ट्रैक्ट पीओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है कि आप ना एक मटेरियल मेरे को एवरी मंथ भेजना है, फिर इस साल पूरा भेजना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या है कि वो सपोर्ट करेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक एग्रीमेंट। आप लेबर सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, बट मटेरियल नॉट सप्लाई कर रहा है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एवरी महीने लेबर कर रहा है, हो सकता है वो सर्विस हो गया, बट सर्विस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट पीओ। प्लान्ड पीओ, प्लान्ड है, आपको पूरा प्लान है, मतलब कब कौन सा कहाँ पे प्लान है, मतलब मेरा 5 लाख का प्लान कर रहा है, 5 लाख रुपए स्टेशनरी खरीदना इस साल में, तो 5 साल का प्लान बना दिया, 5 साल, यहाँ तो इतना वैलिडेट है, 5 लाख से अमाउंट फिक्स हो गया और 1 साल का ईयर फिक्स हो गया, एवरी महीना खरीदता रहेगा उसी पीओ के अगेंस्ट में, खरीदते 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 करते 5 लाख हो गए। 5 लाख ज्यादा हो गया तो आप इनवॉइस पोस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका प्लान किया 5 लाख से, आप पोस्ट कर रहे 5 लाख से ज्यादा पोस्ट नहीं हो रहा, देन यू नीड टू चेंज योर प्लान, दैट इज कॉल्ड प्लान पीओ। ब्लैंकेट पीओ, ब्लैंकेट पीओ ये है कि ब्लैंकेट पीओ क्या पढ़ाया नेहा, याद है? क्वांटिटी प्राइस मतलब जहाँ भेजना है पता रहता है, लेकिन చెప్పాను మీకు మళ్ళా డెలివరీ డేట్ ఉండదు అందులోనా ఇంకా टाइम फ्रेम होता है इसमें, टाइम फ्रेम होता है ब्लैंकेट पीओ में, कि ब्लैंकेट पीओ में क्या ना विदाउट जीआर एंड डायरेक्ट इनवॉइस पोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। इट्स ओनली एफआई रिलेटेड थिंग्स है, बट पीओ ओनली क्रिएशन है, बट वो कोई जीआर नहीं होता है, उस प्लान करके आपको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बुक करना है, उसके लिए वो ब्लैंकेट पीओ होता है। वी विल लर्न ऑल दिस पीओ इन एसएपी, ओके। तो कल इंटरव्यू जाएगा तो व्हाट टाइप ऑफ इनवॉइस यू आर बुकिंग, आई बुक बेस्ड ऑन दी मटेरियल बेस्ड, सर्विस बेस्ड, blanket and contract and planned PO. So they will ask you what is this, you will, आप बता देंगे उस टाइम में, नोट्स देंगे आप लिख लेना, ठीक है। चलो, मटेरियल एंड रिसिप्ट, मटेरियल एंड गुड्स रिसिप्ट बोथ आर सेम मीनिंग है। कोई कुछ कंपनी क्या बोलता है मटेरियल रिसिप्ट होता है, कुछ लोग बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट है, ठीक है। नाउ द वेंडर डिलीवर द मटेरियल, वेंडर ने आपको परचेज ऑर्डर करने का क्या करता है, डिलीवरी करता है। वेंडर इज सेंड द मटेरियल इन योर प्लेस, स्टोर कीपर और गेट्स पास एंट्री एसएपी, स्टोर कीपर को एंट्री पास करना पड़ता है, हाँ, स्टोर की सर एंट्री पास करना पड़ता है, एंड मिगो टी कोड, ओके। तो इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट पोस्ट करेगा, क्या पोस्ट होगा, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट। ये एंट्री लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, एट द टाइम ऑफ नहीं पूछेंगे बट आप लिख लेना, नेक्स्ट इन्वेंटरी में पूछेगा इनवॉइस बुकिंग में, तो ये एंट्री लिख लो, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट एट द टाइम ऑफ मिगो पोस्टिंग। इसको मेरे को प्रिपेयर होने में 3 दिन बनाया है, इसको 2 दिन लगाया है। इस बैच स्टार्ट करेंगे बोल के स्टार्ट कर रहे हैं, ఎవరెవరు జాబ్లు వచ్చినాయో లేదో, నో వన్ మిస్ ద క్లాసెస్, ఓకే। కైండ్లీ అందరూ క్లాస్ అటెండ్ करना है, इट विल बेटर फॉर यू आफ्टर 1.5 मंथ 2 मंथ यू विल स्टार्ट दिस इंटरव्यू। डेफिनेटली 2 महीने के बाद कोई नहीं तो कोई यहाँ से क्लियर करेगा, चैलेंज करके बोलता हूँ। आफ्टर मैरिज एक्सपीरियंस पीपल पर्टिकुलरली 1-2 ईयर जो इसका एक्सपीरियंस है जल्दी कॉल आएगा, जो फ्रेशर्स है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, राइट। So achieve GRN return acknowledgement, confirm the goods, invoice has been received, इनवॉइस आ गया। GRN पीपल जब लॉरी में आता है मटेरियल उसी टाइम इनवॉइस आता है, राइट। अदरवाइज फिजिकल आता तो उसी में आता है, क्योंकि वही उसमें आता है इंडिया में। कारण क्या है, इंडिया में ना गाड़ी पकड़ता है, वे बिल जो होता है, टोल गेट्स होता है, राइट। इन द टोल गेट्स इनवॉइस नहीं है तो लॉरी को साइड करता है। आप देखा होगा कभी कभी आप कहीं भी जाने के टाइम बड़ा बड़ा लॉरी लाइन रहता है बीच बीच में, उसका कारण नहीं होता है, उसका वे बिल नहीं होता है, ठीक है, उसका इनवॉइस नंबर नहीं होता है। तो इंडिया का रूल क्या है, ट्रांसपोर्ट में कोई मटेरियल जाना चाहिए विद इनवॉइस जाना चाहिए। इवन तो आप कलकत्ता से यहाँ पे टीवी लेके आएगा ट्रेन में,
कोई भी पकड़ेगा तो उसको इनवॉइस पूछेगा, तो आप चोरी करके ले गए खरीद के ले गए, हाउ डू यू नो दैट, राइट? दीज ऑल थिंग्स आर मैंडेटरी। सो क्या है, तो जनरली ये यूजिंग एसएपी इन्वेंटरी अकाउंट, जीआरएन रिटर्न एक्नॉलेजमेंट द कंफर्म द गुड्स एंड इनवॉइस हैज रिसीव्ड, इनवॉइस आ गया फिजिकली, बट यू आर नॉट एंटर्ड एज ऑफ नाउ इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अभी भी आपका एक प्लेस में स्टॉक आ गया, बट और एक प्लेस में वेंडर को लायबिलिटी नहीं हुआ है, इट्स ओनली वन लाइन स्टैंड है, मतलब ओनली मेटेरियल है। अकाउंट कब बनता है? द इवेंट ऑफ टू ट्रांजेक्शन, द इवेंट, तो एक इवेंट होना चाहिए। इवेंट मतलब मेटेरियल आया, एक इवेंट है, मेटेरियल आया तो कहाँ से आया, ओनली मेटेरियल आया, मेटेरियल रिसीव्ड, एक एंट्री, एक लाइन हो गया। सेकंड लाइन वेरी, सेकंड लाइन नहीं है अभी तक। जीआरआई टेम्पररी अकाउंट है, इसीलिए एसएपी एक लाइन पोस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए दूसरा लाइन लेके आया जीआरआई क्लियर होता है, क्यों टेम्पररी अकाउंट, अंटिल जब नहीं आएगा तब तक ये टेम्पररी अकाउंट रहेगा। कभी भी जीआर अकाउंटिंग में मंथ एंड एक्टिविटीज में आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जीआरआई के लिए, तो वो चीज जब पढ़ाएंगे सिस्टम में तब बताएंगे मंथ एंड एक्टिविटीज क्या होता है, आपका रोल क्या है मंथ एंड में, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या मॉनिटरिंग, एवरीथिंग आई विल टीच यू। ओके, जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट, सो जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट में क्रिएट हो गया। कभी भी जीआर अकाउंट में इफ इट अमाउंट इज ऑलवेज स्टैंड इन जीआरआई क्लियरिंग अकाउंट, इट मीनिंग ऑफ दैट you may be not received the material, you not posted into invoices or something in descriptions, कुछ मिस है descriptions here, मतलब something is misbalance, इसीलिए जीआरआई स्टैंडर्ड खड़ा है। ऑलवेज जीआरआई नली पे ही होना चाहिए, नली पे मतलब कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए। इफ जीआरआई हैव ए बैलेंस इट मींस समथिंग इज मिसिंग, इधर मटेरियल नहीं आया, इनवॉइस अमाउंट ज्यादा आ गया, नहीं तो आपको इनवॉइस पोस्ट नहीं किया, नहीं तो इनवॉइस आ गया जीआरएन नहीं आया, देयर इज एनी सिचुएशन जीआरएन, ठीक है। इसके लिए मंथ एंड एक्टिविटी में एक करना पड़ता है, वो क्या है बताएंगे, ठीक है। जीआरएन डेटा एक्नॉलेजमेंट इनवॉइस जनरेटेड है, इट इज आल्सो कॉल्ड जीआरएन नोट्स और मटेरियल नोट बोल सकते हैं, बोलेंगे राइट। इफ यू कॉल्ड एनीथिंग एज ए वेरिंग इज कॉल्ड एज जीआरएन गुड्स रिसीव्ड और मटेरियल रिसीव्ड, राइट। फॉर एग्जांपल 200 सर्च हैज बीन डिलीवर्ड बाय द पिक्सल ग्रुप, हम लोग फिक्स कर दिया किसका, पिक्सल का। प्लान विल कंटिन्यू टू स्टोर इन द वेयरहाउस प्रोसेस, राइट, पोस्ट कर दिया जीआरएन में और स्टोर कर दिया सम लोकेशन। नेक्स्ट क्या होगा, इनवॉइस प्लस, right? Now we receive the soft copy of the invoice. Before processing it, we have to verify the invoice. 2-way 3-way मैच चेक करेंगे। इनवॉइस पोस्ट करने से पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट इनवॉइस आ गया पोस्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वी नीड टू चेक, इंटरव्यू में पूछते हैं तो डू यू नो 2-way मैच, डू यू नो 3-way मैच, ये क्वेश्चन कंपलसरी है। कोई इंटरव्यू किया रिसेंटली, अड़ गया देखो 3 इंटरव्यू में 3 इंटरव्यू एक चीज पूछा है, 100% पूछेगा 2-way मैच क्या है, 3-way मैच क्या है। 2-way मैच जनरली सुनो, 2-way मैच किस पे होता है, सर्विस रिलेटेड पीओ होता है, उसमें 2-way मैच होता है। परचेज ऑर्डर होता है, डायरेक्ट इनवॉइस होता है, देयर इज नॉट जीआरएन। परचेज सर्विस पे क्या जीआरएन करेगा, तो सर्विस इज नॉट मटेरियल, राइट, मटेरियल है, सर्विस नहीं है। देयर इज अ कंपनी सर्विस पीओ आल्सो दे ट्रीटेड एज ए जीआरएन, दैट इज कॉल्ड ए सर्विस एंट्रीशिप। कुछ क्लाइंट ऐसे करता है, नहीं हम लोग 2-way मैच नहीं करेंगे, 3-way मैच ही करेंगे, देन दे विल यूज एज ए सर्विस एंट्रीशिप, मतलब सर्विस एंट्रीशिप। यस, सर्विस किया बोल के वो आदमी कंफर्म करना है, देयर इज अ डिमांड। नहीं कंसल्टेंट्स आया, कंपनी में काम किया, सर्विस किया, मैंने देखा है फिजिकली, समबडी हैज टू करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सर्विस एंट्रीशिप, ठीक है, होता है। तो आप बोल वो दोनों पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। 2-way मैच एंड 3-way मैच, जनरली यू कैन से यस 2-way मैच इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर सर्विस एंट्रीशिप एंड 3-way मैच इज एप्लीकेबल फॉर गुड्स। आप बता देगा मटेरियल पे, मटेरियल पीओ परचेज क्रिएट होगा, जीआरएन होगा, इनवॉइस होगा, परचेज हुआ, इनवॉइस आ गया होगा, बाद में जीआरएन भी हो सकते हैं। ऑलवेज जीआरएन पहले होना बोल के कोई रूल नहीं है, इनवॉइस भी पहले हो सकता है, उसका भी कंडीशन है, वो कंडीशन सीखेंगे, इतना कुछ, ठीक है। जीआरएन विदाउट जीआरएन इनवॉइस आल्सो यू कैन पोस्ट, देयर आर अ फ्यू कंपनी हैव ए रिक्वायर एवरीथिंग रिक्वायरमेंट है। तो आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑर्डर आपने मेंशन कर दिया with this purchase order without GRN there is system could not allow to invoice post बोल के एक रेडियो बटन छोटा वाला होता है, उसको GRN टिक कर देगा। टिक करने से क्या होगा, सो अनटिल अनलेस GRN जब तक नहीं होगा तब तक आप इनवॉइस पोस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ कंपनी क्लाइंट रिक्वायरमेंट नो, वी कैन आल्सो पोस्ट दिस पीओ, ये पीओ ना पोस्ट होना चाहिए विदाउट GRN, देन यस बाद में इनवॉइस आएगा, वो भी हो सकता है, डिपेंड एवरीथिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट जैसे बोलेगा कंसल्टेंट वोंट डू डेवलपमेंट, ओके। इफ यू डू वर्किंग विद दिस ऑल एरिया देन यू गेट द नॉलेज। तो मैं ओवरव्यू पढ़ाएंगे, ठीक है, कहाँ पे जीआरएन टिक करना है, कहाँ क्या होने से क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, 3-way 2-way मैच समझ में आया। नाउ वंस वी डन द इनवॉइस वेरिफिकेशन वी हैव
प्रोसेस द टी कोड, कौन सा प्रोसेस करेंगे? मायरो और मेरो दोनों भी। बस जीआरआईआर पहले क्या था? क्रेडिट था, अभी क्या हो गया? जीआरआईआर अकाउंट डेबिट हो गया, वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो गया। अभी ओवरऑल देखिएगा जीआरआई एक बार क्रेडिट में पड़ा है, एक बार डेबिट में, नलिफाई। एंट्री क्या हो गया? इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्यों एंट्री पोस्ट कर रहा है? कारण क्या है ये भी बता रहा है। कारण इसलिए कि आपको जीआरआईआर क्लियर अकाउंट क्यों बना रहा है, देयर इज ए वन रीजन। तो समझो इस मंथ एंड है, मंथ एंड में आपको जीआर नहीं आया, इनवॉइस आ गया, ठीक है। मंथ एंड में आपको क्या हुआ? यू हैव नॉट रिसीव्ड द जीआरएन बट यू रिसीव्ड द इनवॉइस। यू कैन पोस्ट दिस मंथ करंट मंथ ऑन द इनवॉइस, देन द लायबिलिटी स्टैंड ऑन करंट मंथ ओनली, है ना। तो कल कोई पूछेगा आपको, अच्छा कितना टोटल पेएबल देना है, तो यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द रिपोर्ट एंड प्रोवाइड टू मैनेजर, राइट। सो ओके 5 करोड़ रुपए देना है। सब उस 5 करोड़ में 1 करोड़ के इनवॉइस नहीं पोस्ट किया, तो आपने नहीं बोल पाएंगे ना 6 करोड़ दिया बोल के, पेंडिंग है, क्योंकि यू आर नॉट टेकन दैट इनवॉइस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। तब वो 5 लाख से वो 5 लाख को फंड पूछेंगे मैनेजमेंट को, पेमेंट टीम को बोलेंगे 5 लाख को अरेंज करो, तो वो लोग 5 करोड़ अरेंज कर दिया, बट आप उसके बाद नेक्स्ट दिन जीआरएन मेटेरियल आ गया, आप पोस्ट कर दिया, तो मैनेजर आपको बोलेगा कि आप उस टाइम में क्यों नहीं दिया मैंने। तो वेंडर से क्या होगा? वेंडर आपको बोलेगा पैसा रिमेंड करेगा, तो देन कंपनी विल नॉट, नो बजट में नहीं है, तो बजट में देखें दे विल, वेंडर बोलेगा नहीं नेक्स्ट टाइम में सप्लाई नहीं करेंगे, देन ह्यूज इंपैक्ट, राइट। प्रोडक्शन के इंपैक्ट होगा। दिस ऑल रीजन देयर आर ए कंपनी टू सेइंग दैट ओएस विदाउट जीआर ऑल्सो वी कैन अलाउ द इनवॉइस बुकिंग बट इट शुड बी ब्लॉक, कुड नॉट पेमेंट। क्या होगा? वो इनवॉइस ब्लॉक हो जाएगा, बट इट इज ए ब्लॉक, इनवॉइस पोस्ट होकर ब्लॉक हो जाएगा। मतलब वेंडर हैज स्टैंड एज ए लायबिलिटी में खड़ा हो जाएगा वेंडर, बट वी कैन नॉट, नोबडी विल पोस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों पेमेंट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने उसमें जीआरएन मैच नहीं है, 3 में मैच नहीं हुआ, इसलिए वो इनवॉइस ब्लॉक होगा, राइट, गॉट इट। अगर पेमेंट कर देंगे कोई कंट्रोल नहीं है, पेमेंट नहीं देंगे तभी कंट्रोल है। वो कब ब्लॉक हटेगा? जब जीआरएन आ जाएगा वो ब्लॉक हटेगा, तब मैच हुआ ना। दिस इज कंडीशन। अगर वो नहीं पोस्ट करेंगे तो आपका बिग इंपैक्ट होगा, लायबिलिटी स्टैंड नहीं करा पाएंगे, तो आप फंड ड्यू कितना कैसे बताएंगे मैनेजर को? अगर वो अमाउंट गलत बता दिया तो यूज इंपैक्ट होगा, क्योंकि वो बजट नहीं प्रोवाइड करेगा। बजट मैनेजर प्रोवाइड कर ले इतना ही है, तो वेंडर को पेमेंट मिस हो जाएगा, वेंडर को पेमेंट मिस होने से क्या होगा? फिर दिक्कत, बिजनेस के इम्पैक्ट। ये सब रीजन है। प्रॉपर वे में जो टॉप लेवल जो होता है बिजनेस में, द कोर टीम मेंबर दे विल डिसाइडेड which process is good for us company, for what process we need to involve. All these things they have developed. When you are going into the sitting the project, then you understand these all the scenarios. जो कंसल्टेंट होता है, हम लोग बैठता है तो पता चल जाता है। तो these are all the business roles and responsibility. Okay? That is 2-way and 3-way match. हम लोग सीखेंगे। तो वेंडर पेमेंट कब आता है जैसे वो भी टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। So tolerance limit means what? Suppose series has only up to 1 lakh, 1 crore, he will allow to, she is allowed to post the transaction into books of account. Only up to 1 crore. His ID allowed. After 1 crore, it will reach down to 1 crore. So he couldn't have to post. She couldn't have to. Why? Because she has a only tolerance limit up to 1 crore rupees. मतलब इनका जो आईडी में है 1 करोड़ तक ही दिया है सीरीज आईडी में। सीरीज आर एबल टू पोस्ट अप टू 1 करोड़ रुपीस ओनली। मोर देन 1 करोड़ शी कैन सेंड ए मेल, सो सॉरी I couldn't post, I can able to not post because my tolerance limit as set up is up to 1 crore rupees. Kindly to process this invoice to somebody else in the team. Right? Clear? अगर वो मेल नहीं भेजेंगे तो what will happen? उनका पास ऐसे क्यों में पड़ा रहेगा? वो गलत चीज है। ऑलवेज इंटरव्यू में पूछेंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, यू कैन से यस आई डोंट हैव ए टॉलरेंस लिमिट एज पर माय कंपनी रूल्स, देन आई स्पॉटली आई विल ट्राई टू पोस्ट। इट इज सेइंग द टॉलरेंस लिमिट, आई कैन सिंपली सेंडिंग टू मेल, so saying that my team lead, so I couldn't able to post, then team lead have able to pass this invoice to someone else. अगर नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ा रहेंगे तो वेंडर की इनवॉइस पोस्ट नहीं होगा, पेमेंट कब होगा? टॉलरेंस लिमिट मींस इट इज अ लिमिटेशन। बिफोर द इनवॉइस प्रोसेसिंग, मतलब ये प्रोसीड्यूर जैसे हम 2 3 वे कर रहे हैं, वैसे टॉलरेंस चेक करेंगे, ये हमारा काम है ना। नहीं, टॉलरेंस चेक करने आपका काम नहीं है। टॉलरेंस बाय बैकएंड में सिस्टम में कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। सिस्टम में ना आप जैसे पोस्ट करने जाएंगे, आपका टॉलरेंस में नहीं है, सिस्टम आपको इनवॉइस पोस्ट करने ही नहीं देगा। हाँ, तो इट इज वी कैन नॉट चेक बिकॉज यू नो दैट टॉलरेंस लिमिट आपको पता है कि मैनेजर एट द टाइम में बोल देते कि आपको 5 करोड़ तक चांस है, बोल देगा। That is only no, but you forget also not worried about, because system could not allow in your ID more than that value, because your ID is fixed as a tolerance limit. That's a backend. What kind of like parameter have you checked before the processing the invoice?
Yes. Tolerance limit you cannot say, because you can say yes, tolerance limit as a one option, but I couldn't able to see all this thing because my id is already fixed in the background system में फिक्स है कि सूरज आईडी में नहीं होगा। सूरज जब पोस्ट करने लगेंगे सिस्टम ही रोक देगा, तो अभी वही अकाउंट से अननेसेसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम तो मेरा कर ही नहीं दे रहा है, अगर सिस्टम करने दे रहा है तब आप चेक करना है, सिस्टम तो आपको रोक दे रहा है, राइट। चलो वेंडर पेमेंट, अभी तक इनवॉइस को ओवरव्यू मिला है, क्या है अभी वेंडर पेमेंट के बारे में। यस, जो टॉलरेंस लिमिट अभी ये बोला है 1 करोड़ जो है एक इनवॉइस के लिए पर्टिकुलर रहता है या सारा इनवॉइस? नहीं, नॉट लाइक, सो दैट इज ओनली पर डॉक्यूमेंट, पर ट्रांजेक्शन, पर मीन्स पर इनवॉइस हो सकते हैं। एक इनवॉइस में 10 लाइन भी होगा तो 10 लाइन मिला के, इट नॉट मीनिंग द टोटल पर डॉक्यूमेंट। हाँ, द इनवॉइस कुड नॉट पोस्ट मोर देन 1 करोड़ रुपीज, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा इनवॉइस पोस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल अमाउंट 1 करोड़ से नहीं, उस इनवॉइस 1 करोड़, कोई भी इनवॉइस 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप आईडी से पोस्ट करें। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट आल्सो, थ्रेशोल्ड लिमिट बोल सकते हैं। प्रोसेस 1 करोड़ इनवॉइस, one invoice. After that, I can process 50 lakh invoice. Yes, 50 lakh, whatever invoice you can post. It is not count day wise, it is not point wise, there is no in SAP. No, you will not allowed to post. Park भी नहीं कर पाएंगे। Okay? So, पेमेंट अभी ऑन द बेस ऑफ द पे जब वेंडर क्रेडिट हो जाएगा सिस्टम रिलीज द पेमेंट करेंगे, है ना। सिस्टम इनवॉइस बुक होगी तो पेमेंट देना पड़ेगा ना, इधर मैन्युअली करना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट नॉर्मल पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट। नॉर्मल पेमेंट मतलब सिंगल वेंडर को पेमेंट करना, ऑटोमेटिक पेमेंट मतलब बल्क वेंडर को एक ही बार पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझो कि मेरा आज का डेट में 2 लाख वेंडर अकाउंट्स है, 2 लाख में आज का डेट में कितने आदमी को ड्यू है, नोबडी इज नोन, मेरे को पता नहीं है कि 2 लाख को कैसे चेक करेंगे। इट्स वेरी टफ, even though I extract the report and aging report, whatever the report, it will take time, very difficult to find out, right? So, but as per your team lead, as per your top management is that no, when you are posting this payment run, you can block particular 5 to vendor. Vendor को बोलेंगे 5 vendor को पेमेंट मत देना, रोक देना, बाकी सब vendor को दे देना। बताया तो आपको, you have in mind, तो आपको रिकॉर्ड आ गया। आज का पेमेंट रन होगा तो ये 2 lakhs में से जो भी जितना भी आएगा उसमें से मैंने ये 5 vendor को पेमेंट नहीं करेंगे, जस्ट रन करके देखो, उसमें 5 आ गया तो आपको उसको ब्लॉक कर दो। अगर आपको नहीं मैं भूल जाएंगे सोचा तो उसको आप एक्सक्लूड कर दो पहले ही, जब पेमेंट रन करेंगे उसी टाइम में 5 वेंडर को एक्सक्लूड करने डाल देना, तो सिस्टम क्या करेगा ना, उस 5 वेंडर छोड़कर बाकी वेंडर को आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एट ए टाइम बल्क पेमेंट, समझो श्रीषा को 5 इनवॉइस ने मैंने श्रीषा के अकाउंट में बुक किया, श्रीषा को 5 इनवॉइस पोस्ट हुआ तो 5 लाख रुपया है, बट आज का डेट में इनको ओनली 2 लाख ही देना है, 3 लाख नहीं देना है, क्योंकि इसका पेमेंट टर्म अलग अलग डेट है, ठीक है। नेक्स्ट मंडे हो सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मंथ हो सकते हैं, तो आज का डेट में क्या है 2 ही करना है, तो सिस्टम क्या करेगा मेरे को ना ओनली 2 ही लेके आएगा, बाकी 3 लेके नहीं आएगा, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिक बैकएंड में सेटिंग है, फ्रंट एंड में तुमको ये चेक करना, तो ये आपको जरूरी नहीं है बैकएंड क्या है क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड ऑल, बिकॉज यू हैव टू नॉलेज ओनली फॉर योर प्रोफाइल, नॉट फॉर अदर प्रोफाइल, राइट। उसमें कंसल्टेंट में बैक में जाके चेक करने की जरूरत नहीं, दैट इज अ कंसल्टेंट वर्क, कंसल्टेंट विल डू दैट। नोबडी आपका कंपनी में कोई भी रहेगा किसी के पास एक्सेस नहीं रहेगा, वो बैकएंड चेक करने, ओनली कंसल्टेंट के पास एक्सेस होता है, ठीक है। सो ये नॉर्मल पेमेंट इंडिविजुअल होगा, बल्क पेमेंट एट ए टाइम में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू डेट पर क्या आ जाएगा, कैसे आएंगे क्या आएंगे सीखेंगे, एज वेल एज एडवांस पेमेंट। जब वेंडर को पेमेंट होगा वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। रिकॉन्सिलेशन एंड रिपोर्टिंग ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में दूसरा पढ़ाएंगे। रिकॉन्सिलेशन एंड रिपोर्टिंग, वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट्स पेबल प्रोसेस द वेरीफाई द बैलेंस ऑफ वेंडर अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका होगा तो फोटो ले लो, नेक्स्ट मोबाइल में ले लो, ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, आओ भी बनाना है, बहुत टाइम लगेगा ड्राइव में, लास्ट एंड ऑफ द क्लास में एक बार लगाएंगे गूगल ड्राइव में। अब इसको बहुत करना है, मेरे पॉइंट अभी बना रहा हूँ, इसलिए फोटो लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा रिकॉन्सिलेशन क्या है, आप कैसे चेक करेगा, तो यू कैन टेल ऑल द गैदरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ये वाला ले लिया ना, अभी बोलेंगे जो जो फोटो लेना लाल ग्रुप में डाल देना, कोई भी सबको चला जाएगा, सिंपल है, ठीक है। देखो रिकॉन्सिलेशन कैसे चेक करेंगे, इंटरव्यू में ये बताना पड़ेगा। During the reconciliation, you will compare the internal payment record against the invoice statement received from the vendor, confirm amount still on them, right? उसका पास क्या है, हम लोगों के पास क्या है, दोनों एक गैदर करेगा,
5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या है? नेसेसरी मतलब गैदरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, मतलब उनका स्टेटमेंट पहले मंगाना पड़ेगा। कैन यू प्लीज शेयर योर स्टेटमेंट? तो वेंडर स्टेटमेंट भेजेगा, आपका स्टेटमेंट, दोनों कंपेयर करो, ठीक है। देन कंपेयर द अकाउंट बैलेंस, उसका बैलेंस क्या है, तुम्हारा बैलेंस क्या है। उसके बाद क्या करना है? मैच इनवॉइस, इनवॉइस मैच हो रहा नहीं हो रहा है, कोई इनवॉइस उसका बुक्स में ज्यादा हो गया तो आपका बुक्स में ज्यादा हो गया, वो कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? वेरीफाई द पेमेंट, क्या हम लोग का जो पेमेंट है उसका पेमेंट रिकॉर्ड है कि नहीं। हो सकता है ना उसका पेमेंट मिस हो गया, हम लोग का पेमेंट मिस हो गया, एनीथिंग विल हैपन। हम लोग का पेमेंट कभी नहीं मिस होगा क्योंकि सिस्टम में एंट्री मारता है, उनका ही पेमेंट मिस हो सकता है, राइट। ये चीज कुछ कुछ कॉमन है कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि वेंडर पेमेंट कभी हम लोग सिस्टम मिस नहीं होगा, उसका ही पेमेंट मिस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा? आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट, आइडेंटिफाई कर लिया, चारों कंपेयर करके इन्वेस्टिगेट करके फिर डिस्क्रिपेंसी जो है वो नोट करके बता देना, भाई आपने इनवॉइस डबल कर दिया, नहीं तो आपने पेमेंट एंट्री नहीं डाला, नहीं तो हम लोग मिस कर दिया, जो भी है फाइनलाइज करके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, ये आंसर बताना। Then anybody can understand, yes, you worked in accounts payable team because we are all are modifying our resume, right? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कल मैं accounts payable में नहीं काम किया, right? That is main intention, right? Anybody real time में तो वही होता है। Even though if FICO consultant, I am working in a FICO consultant, and I may be not in S/4HANA fully implemented, but I can say yes, I worked in 1 or 2 implementation by S/4HANA, बोलना पड़ता है, वो तो कॉमन है, राइट। तो यही है रिकॉन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक हो गया, कल क्लास से ये वाला पढ़ाएंगे, ठीक है, P2P और भी पढ़ाएंगे, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास से ఇవన్నీ లాస్ట్ ఇస్తాను, ఇప్పుడు ఇవ్వను, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇస్తాను, ఇంకా చాలా ప్రిపరేషన్ చేయాలా, ठीक है। एंड ऑफ द डे में देंगे। ऑनलाइन में कोई पूछ सकते हैं क्या? हेलो ऑनलाइन पीपल, ऑनलाइन गाइस, 1 minute। No, good. हेलो गौरव, हेलो